राइट. This is the biggest exclusive news on the podcast today. कि बहुत सारे लोगों को इस टाइम पे फेमस होना है, राइट. But also we cannot even guess whether Love is making video. Like, am I doing this podcast with Love or Lakshay? अपने पेरेंट को बोलोगे ना कि आपको एक बिजनेस सेटअप करना है या फिर एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, तो बोलेंगे क्या बकवास कर रहा है यार, चुपचाप जॉब कर ले. और Welcome to Shut Up Saransh. In this episode, we had a conversation with Lakshay Chopra, a 21-year-old entrepreneur and a tech YouTuber with over 135,000 subscribers on YouTube, about creating content consistently, what it takes to be consistent on social media, why it is important to build yourself during your late teens and early 20s, how product manufacturing businesses are different and a bit complicated than service and tech businesses. This episode is a bundle of knowledge. We talked about YouTube and Instagram in detail. We talked about how aspiring content creators can start their content creation journey with some key strategies to keep in mind. Enjoy this episode with Lakshay Chopra only on Shut Up Saransh. 3, 2, 1, and yes, we are live. Hi guys, welcome to Shut Up Saransh, the podcast where we talk about everything on the intersection of startups, money, hustle and life with people under 25 doing crazy shit. Today we have someone with us who really inspires me with his hard work, the guy who has mastered consistency on social media. He's a 21-year-old tech YouTuber and an entrepreneur. He has over 135k subscribers on YouTube, where he talks about everything related to Apple news, iPhones and MacBooks. Founder of Case Gear, Lakshay Chopra. Welcome Lakshay to the podcast. थैंक यू सो मच सुरांश. बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आज, होपफुली, राइट. एंड वन मोर थिंग, आई वुड अप्रिशिएट यू एज वेल, बिकॉज आपने भी जो भी स्टार्ट किया, राइट, मैं रेगुलर देख रहा था एंड इट इज़ वंडरफुल, आई वुड से. बिकॉज सी, इस एज में सब लोग नहीं करते ये सारी चीज़ें, राइट. बहुत लोगों के लिए शायद ये चीज़ें ऑड होंगी कि यार इस एज में हम लोग क्या कर रहे हैं, राइट. पार्टीज कर लेंगे, इन्जॉय कर लेंगे, वो एक वो एक सेट है. लेकिन सेकेंड सेट ऑफ लाइफ में ये सारी चीज़ें आउट ऑफ द बॉक्स करना इज़ वेरी मच, आई वुड से, मतलब नहीं करते यार बहुत सारे लोग. तो आप कर रहे हो, इट्स अमेजिंग, राइट. एंड होपफुली एक अच्छी कॉन्वर्जेशन रहेगी. बिल्कुल, looking forward to it. और I would like to tell you guys that Lakshay and I graduated from the same school. He was 2 years senior to me, and what's more common amongst us is that our birthdays also fall on the same date. सेम डेट? हाँ, I thought Lakshay को नहीं पता था. हाँ, yeah, 29 December only. Honestly मेरे को नहीं पता था. Great. We have that same energy है ना, and वो same connect तभी आ रहा है. बिल्कुल, Capricorns. Yeah. Chalo, let's start with the questions. So what I have filtered out from my previous conversations with various content creators and entrepreneurs that I met on LinkedIn is that the first thing that they did was never content creation. Like, there always exists some gigs before you stumble upon content creation. So like, this is a very deep question on the podcast because Lakshay stays a bit private apart from creating Apple News content, and I want the Apple India channel's audience also, and my audience as well, to get to know more a bit of Lakshay behind the camera and behind all of this process. So like, what were the initial gigs or experiences you explored like before becoming full-time content creator? And as I have talked about school, so let's begin from the start of the journey, like how things took place, like just after you graduated school, and did you start college or like did you drop in between? So like, how everything went on. So yeah, it was like, मतलब it was both of the things. बैक ऑफ द माइंड एक चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही थी कि कुछ ना कुछ क्रैक करना है, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, टू बी वेरी ऑनेस्ट. एंड सेकेंडली वो फेम वाली चीज़ भी नहीं थी कि यूट्यूब पे आके फेमस होना और वो वाली चीज़. बट इट वॉज मोर ऑफ कि कुछ ऐसा करना है आउट ऑफ द बॉक्स, अगेन कि बेसिकली पेरेंट्स प्राउड हो या फिर फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, राइट. तो आई वुड से लास्ट एग्ज़ाम मेरे को अभी भी याद है कि उस टाइम पे कोविड आ गया था, राइट. सो इट वाज लाइक कि क्या करना है, अब किसी को भी कुछ नहीं पता था. बट मेरे को बैक ऑफ द माइंड ये मैंने प्लान कर लिया था उसी नेक्स्ट डे से कि ये अब टाइम है 2-3 मंथ्स. पता नहीं था किसी को भी कि लॉकडाउन कितना ज़्यादा होने वाला है और क्या सब होगा. बट मैंने एक सर्विस टाइप ऑफ, आई वुड से, स्टार्टअप था
कंप्लीटली स्टार्टअप भी नहीं बोलूँगा बिकॉज उस टाइम पे ये चीज़ इतनी कॉमन नहीं थी, बट मोर ऑफर मेरे को ये दिख रहा था कि एक अपॉर्चुनिटी है, तो एक चीज़ थी जो मैं अभी यहाँ पे नहीं बता सकता किसी को भी, राइट। तो क्योंकि वो अभी भी चल रहा है, राइट। तो वो एक सर्विस बिजनेस था बेसिकली, अभी भी है, बट उसमें मैंने स्टार्ट किया था तब यूट्यूब नहीं था, आईफोन्स, एप्पल कुछ भी नहीं था, बट बेसिकली स्टार्ट कर दिया था मैंने और मेरे को लग रहा था कि मैं कुछ डिफरेंट कर रहा हूँ। सो एट वेरी फर्स्ट मंथ इट वॉज लाइक डील ब्रेकर फॉर मी, क्योंकि जो भी मैंने अर्न की और वो सारी चीज़ें, तो मेरे को ये था कि कहीं ना कहीं मेरे को हेल्प कर रही है, राइट। बट सब कुछ घर पे हो रहा था तो वो मेरे लिए डिफरेंट था। उसके बाद ऐसा सबके साथ होता है कि कभी कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, स्पेशली इस एज में 18 to 25 कि अब मज़ा नहीं आ रहा, अब कुछ और करते हैं। तो मेरे लिए भी वो चीज़ हुई थी, बट मैंने उसको साथ में कंटिन्यू रखा और उसके बाद मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया। और यूट्यूब मैंने बहुत रैंडमली स्टार्ट किया था, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था बहुत बड़ा कि मेरे को कंटेंट क्रिएटर या यूट्यूबर बनना है। एंड यू वर एब्सोल्युटली राइट कि मैं बहुत ज़्यादा प्राइवेट रहता हूँ, क्योंकि मैंने क्या सीखा है कि जो आप डिलीवर कर रहे हो उसमें आप फुल फ्लेज जितना डिलीवर कर सकते हो अच्छे तरीके से करो, राइट, विद फुल एनर्जी। अगर आप मेरी वीडियोस भी देखोगे तो मतलब मैं बहुत एनर्जी से वीडियोस बनाता हूँ और स्टार्टिंग से ही मेरा वो रहा है। बट व्हेन इट कम्स टू माय पर्सनल लाइफ, माय प्राइवेट थिंग्स, तो मैं बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव उन चीज़ों को लेके। जैसे सबको केस गियर पता है, और वो केस गियर क्यों पता है, क्योंकि मैंने उसको पब्लिक किया है, मेरी ऑडियंसेस है जो देख रही है, बिकॉज आई नो मेरे को वहाँ से बिजनेस बनाना था, वो मेरा एक स्ट्रॉन्ग बेस था। बट व्हेन इट कम्स टू 2 more थिंग्स, जो कि मेरी 2 और चीज़ें जो मैंने शायद सबसे पहले स्टार्ट करी थी, जो कि एक सर्विस बिजनेस था, उसके बारे में अभी तक किसी को भी नहीं पता है, राइट। ओनली फ्यू पीपल आई वुड से इन माई लाइफ, राइट। तो वो इसलिए है क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ पब्लिक कर देते हैं तो शायद उसका उतना ऑर्गेनिक रिस्पॉन्स नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल केस गियर है, तो केस गियर पे आप लोगों, स्कूल फ्रेंड्स वगैरह सब ने सपोर्ट किया, एंड मोर ऑफन आई वुड से जो लोग मेरे को यूट्यूब पे देख रहे हैं उन लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। तो वो थोड़ा सा आई वुड से उतना ऑर्गेनिक नहीं था, राइट। ऑर्गेनिक अब होना चीज़ें शुरू हुई हैं, बट ऑल टुगेदर आई वुड से कि वो मिक्स था। तो अगर आप कुछ भी डिफरेंट करना चाहते हो तो मैं ऐसा लगता है मेरे को कि ज़्यादा पब्लिक मत करो उसको। अगर ज़्यादा पब्लिक करोगे तो चीज़ें खराब हो जाएंगी और फिर फिगर आउट नहीं कर पाओगे आप कि चीज़ें कहाँ आप गलत कर रहे हो और कैसे ठीक करना है आपको। Lakshay, please tell tell people about what is Case Gear, and how big is the team there, what it takes to drop the fundamental idea of attending college and starting a company at 19, at 20, and how is it to build a startup while creating content. I have so many questions about Case Gear, but yeah, let's start with all of these. So see, there are 2 things जैसे आपने बात करी है, कंटेंट क्रिएशन था, एक सेकंड इज बिल्डिंग अ बिजनेस। सो उस केस में ना आपको भी खुद डिफरेंट होना पड़ता है। नाउ कमिंग टू कंटेंट क्रिएशन, मैं बहुत ज़्यादा सिंपल हूँ, ईजी गोइंग हूँ, राइट। मैं ज़्यादा नहीं सोचता क्या चल रहा है क्या हो रहा है। बट व्हेन इट कम्स टू बिजनेस आपको थोड़ा एग्रेसिव होना पड़ता है, राइट। आपको बहुत ज़्यादा फोकस रहना पड़ता है, आपको लेफ्ट राइट आई वुड से कि आपको बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं उस कॉन्टेक्स्ट में। बिकॉज क्या हो रहा है कि बिजनेस इज अ थिंग, अगर आपने कहीं पे लूज किया तो कोई और पकड़ के आगे ले जाएगा, राइट। तो ये एक ऐसी चीज़ है, बिजनेस इज वन एस्पेक्ट ऑफ थिंग जिसमें आपको थोड़ा सा एग्रेसिव होना पड़ेगा। और सेम वे अगर मैं अपनी भी बात करूँ तो मेरी ये बिल्कुल डिफरेंट साइड है भी अगर बिजनेस की बात आती है, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा आई एम नॉट ईजी गोइंग एट ऑल। मतलब अगर मेरे को कोई चीज़ आज खत्म करनी है तो वो आज खत्म करनी है, बाय हुक और बाय क्रुक, तो वो चीज़ होनी चाहिए। कमिंग टू केस गियर, तो केस गियर वॉज आइडिया मेरा था, राइट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मेरे को इसको बिल्ड करना है। बट जो एग्जीक्यूशन था इट वॉज ऑल ऑफ लव, राइट। और बिकॉज ऐसा था कि मेरे को अगर इसको एग्जीक्यूट अगर मैं स्टार्ट करने लग गया तो इट वुड बी लाइक कि फिर जो कंटेंट मैं क्रिएट कर रहा हूँ वो पीछे छूट जाएगा। एंड जो मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ वो इट वॉज मोर लाइक अ बेस टू दिस स्टार्टअप, राइट। मैं यहाँ से इसको स्टार्टअप नहीं बोलूँगा बिकॉज यहाँ से तो मेरी ऑडियंसेस ने मेरे को बहुत हेल्प कर दी थी। ऑर्डर्स आए, थाउजेंड्स ऑफ ऑर्डर्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, डे 1 पे आए, तो उसको बिजनेस नहीं बोलेंगे, वो तो आपको लोगों ने हेल्प किया, उन्होंने परचेज किया बिकॉज दे नो मी, तो वहाँ से उसको हम बिजनेस कभी भी नहीं बोलेंगे। दिस इज मोर ऑफन लाइक मर्चेंडाइज और समथिंग लाइक दैट जो कंटेंट क्रिएटर्स या यूट्यूबर्स करते हैं। बट देन देयर वॉज अ टर्न अराउंड जब मेरे को लगा कि मेरे को इस ब्रांड को अपने नाम से नहीं चलाना है, कि दिस ब्रांड इज कि ये लक्ष्य चोपड़ा की ब्रांड है एंड ऑल दैट स्टफ। आई वांटेड कि अगर कोई भी आईफोन परचेज कर रहा है, सो बीट एक्सेसरीज, केसेस और वट एवर द स्टफ, बट आपको फिर वो केस गियर पता होना चाहिए, आपको मेरा या
लव के बारे में नहीं पता होना चाहिए. सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. अगर अभी हम लेट्स से एक शार्क टैंक की भी बात करें तो अब अभी हम लोगों को पता चल रहा है कि अमन गुप्ता कौन है, शनील ग्रोवर कौन है, भारत पे के पीछे या फिर बोर्ड के पीछे कौन है. पहले उन लोगों ने बिजनेस बिल्ड किया, उसके बाद वो लोग जो है फेमस हुए. तो पहले आपको क्रैक करना पड़ता है, उसके बाद आपको आना पड़ता है. सो इट इज लाइक आफ्टर 3 और 4 मंथ्स मैंने ये चीज रियलाइज कर ली थी कि ठीक है, आई एम डूइंग इट, बट ऐसे ग्रो नहीं करने वाला. अगर आपको इसको 10x 20x करना है तो ऐसे आप बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर सकते. आप कब तक 1 लाख 2 लाख लोगों को अपनी वीडियो से ही जो है प्रॉफिट बनाते रहोगे, ये सब चीजें करते रहोगे. आपको रीच बढ़ानी है, राइट, आपको ऑर्गेनिकली ग्रो करना है. तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे को लगी, मैंने कट डाउन किया, मैंने अपनी वीडियोस में से केसीआर को हटाना शुरू कर दिया. मतलब मैंने केसीआर के बारे में बात करना बिल्कुल बंद कर दिया था. और इट वॉज मोर लाइक फिर हम लोगों ने एक टीम सेटअप करी प्रॉपरली, राइट, कमिंग टू पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स, देन मार्केटिंग, राइट, एंड देन नॉट, अभी हम लोग एक चीज़ फिगर आउट कर रहे हैं, दैट इज क्रिएटिंग कंटेंट ऑन आवर सोशल मीडिया हैंडल्स, राइट. उसके लिए भी हम लोग भी टीम सेटअप करने वाले हैं. बट टुडे वी आर अराउंड 12 पीपल इंक्लूडिंग मी एंड लव इन टोटल, राइट. तो हम लोग अभी पूरा जो है इसको रन कर रहे हैं. एंड अभी ये ब्रांड आई वुड से टू बी वेरी ऑनेस्ट एक ग्रोथ आई वुड से हम लोग एक प्लेन पे बैठ गए हैं जो अब उड़ रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट. बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट आ रहा है. और अगेन ये यूट्यूब से नहीं आ रहा, हम लोगों ने अब बिल्कुल बिजनेस के जो स्किल्स होते हैं ना, एक स्टार्टअप के जो एक फैक्टर्स होते हैं कि आपको यहाँ से इस चीज़ को पकड़ के अब ग्रो करना है, राइट. वो जो 0 to 1 आपको चाहिए, तो वो 0 to 1 अब कैसे आएगा वो हम लोगों को समझ आ गई. बिकॉज मैं कंटेंट क्रिएशन में था, ऑब्वियसली मेरा बिजनेस बैकग्राउंड था, बट एक स्टार्टअप बिल्ड करना, एक बिजनेस को प्रॉपरली बिल्ड करना स्क्रैच से, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. और उसमें आप कोई भी गलती ज़्यादा नहीं कर सकते. तो अभी हम लोग उस स्टेज पे हैं जहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं और सभी लोगों का सपोर्ट रहा है. एंड होपफुली हम लोग बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रहे हैं, स्पेशली कमिंग 2-3 मंथ्स में. एंड आपको केस गियर की एक नई आई वुड से चीज़ जो मैं अभी रिवील नहीं कर सकता, बट हिंट दे सकता हूँ कि हम लोग केस गियर पे मतलब आपको सब कुछ एक्सेसिबल कर देंगे, राइट, ताकि आपको 1 मिनट के लिए भी सोचने की ज़रूरत न पड़े. एंड होपफुली सी इंडिया में ऐसी कोई भी पर्टिकुलर आई वुड से केस ब्रांड नहीं है जो सिर्फ इंडिया से स्टार्ट हुई हो. आई वुड से पर्टिकुलरली वैसे लोकल केसेस या फिर नॉर्मल केसेस आपको बहुत सारे लोग ऑनलाइन वेबसाइट बना के सेल करते हुए दिख जाएंगे, लेकिन एक ब्रांड बिल्ड करना, क्वालिटी मेंटेन करना, राइट, डिज़ाइंस मेंटेन करना, मार्केट में क्या चल रहा है वो सारा कुछ मेंटेन करना, वो सिर्फ 2-3 ब्रांड्स ही हैं. और केस गियर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम लोगों को आईफोन्स आजकल सबके पास है, राइट, बट ये चीज़ नहीं है कि जिसके पास आईफोन है वो रिच है तो वो 2000 का भी एक केस परचेज कर लेगा, राइट. सो मेरे को वहाँ पे ये चीज़ समझ आ गई थी कि एक चीज़ इंडिया में लैक कर रही है कि बाहर की ब्रांड्स आके 2000 का 3000 का एक कवर सेल कर रही हैं, राइट. बट ऐसे ये चीज़ इट वाज मोर ऑफन लाइक कि वो अपना उनकी ब्रांड बिल्डिंग है, वो अपने नाम से इस केस को बेच रहे हैं, बट वो प्रॉफिट जितना अर्न कर रहे हैं दैट इज आई वुड से 800% इतना प्रॉफिट होगा उनका. क्योंकि जब बाहर से कोई ब्रांड आती है तो फिर वो नाम भी वैसे बना के आती है, राइट. आई वुड नॉट नेम द ब्रांड्स, बट मेरे को फिर यहाँ पे चीज़ समझ आ गई थी बिकॉज वो ब्रांड्स मेरे को रीच आउट कर रही थी कंटेंट क्रिएट करने के लिए उनके ऊपर यूट्यूब पे. फिर मेरे को वहाँ से ये चीज़ भी समझ आई कि जो ये प्राइसिंग का बहुत बड़ा फैक्टर है. अगर आप अभी केस गियर को देखोगे तो हम लोग 599 से स्टार्ट करते हैं, वी आर गोइंग टिल 1499, बट 1499 इज टू कम्पीट दोज ब्रांड्स जो 3000 का बेच रही हैं, राइट. और अभी कमिंग टू व्हाट इज आवर फ्यूचर प्रोटेक्शन एंड ऑल दैट स्टफ. तो मेरा बहुत सिंपल है एंड ये चीज़ मैं अभी आई वुड नॉट से गारंटी कर रहा हूँ, बट विद इन नेक्स्ट 3 or 4 months वी विल क्रैक ऑल दीज ब्रांड्स हु आर क्रिएटिंग दैट मोनोपोली थिंग कि हम ही राजा हैं इस ब्रांड के. तो वो बिल्कुल भी नहीं होने वाला, राइट. हम जिस स्पेस पे चल रहे हैं, टचवुड, जो हम लोग अभी ऑर्डर्स आ रहे हैं, जो लोगों का प्यार है, दैट इज़ ग्रेट. या तो वो चीज़ अभी बहुत ज़्यादा अच्छे से चल रही है और वो इसका रीज़न भी यही है बिकॉज हम उस प्राइस में और उस क्वालिटी में चीज़ें डिलीवर कर रहे हैं. एंड हमारा अगर एक होता है रिपीट, राइट, रिपीट परसेंटेज कितना है, तो एक केस ब्रांड का रिपीट परसेंटेज 10% ही होता है, 10 to 12%. तो हमारा 40% है, राइट. ये एक केस ब्रांड का होना बहुत बड़ी बात है. तो वो हम लोग क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हम उस प्राइस पे इस चीज़ को लेकर आए हैं और वो क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं. एंड आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक हियर, अभी हम उस लेवल की क्वालिटी पे भी नहीं डिलीवर कर रहे जो होनी चाहिए, बट इट्स ऑल अंडर प्रोसेस. 2-3 महीने लगेंगे बिकॉज आई हैव नेवर बीन टू चाइना टिल नाउ. everything comes from China when it comes to selling cases and accessories of any tech electronics and stuff like that.
बट मैं भी वहाँ पे नहीं गया हूँ, तो मेरे को और और अंदर और अभी स्क्रैच करना है चीज़ों को कि मैं और इसको कैसे सस्ता कर सकता हूँ या फिर और अच्छे से हम कैसे डिलीवर कर सकते हैं जितने भी कस्टमर्स हैं हमारे. बट ऑल टुगेदर यही है कि अभी केस गियर एक नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है, एंड इट इज़ नॉट इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स, बट इट इज़ लाइक मेकिंग ईजी फॉर यू गाइज टू बी इट ऑफलाइन. अब मैं एक हिंट दे देता हूँ, बी इट ऑफलाइन आप केस गियर को ईजिली परचेज कर सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन एक डर रहता है. ऑनलाइन थोड़ा लोग डरते हैं अच्छा आएगा फिर रिटर्न होगा या फिर नहीं होगा. तो एक ऑफलाइन बहुत बड़ा एक्सपेक्ट रहने वाला है. आप जहाँ से आईफोन्स परचेज करते हो वहाँ पे आपको केस गियर मिलेगा. दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इन नेक्स्ट 2 to 3 months, राइट? This is the biggest exclusive news on the podcast today. The biggest news on the podcast today. या सो ये सारी चीज़ें लास्ट आई वुड से 3 to 4 months से चल रही हैं अंडर प्रोसेस, राइट? पेपर वर्क और वो सारा स्टफ. बट अभी कंप्लीटली मैं रिवील नहीं कर सकता कि हम लोग कहाँ पे आने वाले हैं, व्हाट वी आर डूइंग. बट इट इज़ लाइक मोर ऑफ अ NDA, राइट? तो वो चीज़ हम नहीं कर सकते अभी. बट एक बड़ी चीज़ यही है कि मैं यही चाहता हूँ कि जैसे आप आईफोन परचेज करते हो तो आप पहले कलर देखते हो, एक्सपीरियंस करते हो कि कौन सा मॉडल अच्छा लग रहा है, कौन सा मेरे हाथ में अच्छा लगेगा. सो वही चीज़ हम लोग भी करने वाले हैं, बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, की आपके फ़ोन पे कौन सा केस अच्छा लगेगा या फिर आपके एयरपॉड्स पे कौन सा केस अच्छा लगेगा. कोई भी एक्सेसरीज वगैरह होंगी तो हम वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी करने वाले हैं इन सेम प्राइस, वो सारी चीज़ें. बिकॉज मैक्सिमम अभी पिन कोड्स ऐसे भी है जहाँ पे हम लोग डिलीवर नहीं कर पा रहे, तो हम चाहते हैं कि ऑफलाइन आप कहीं पे भी हो, किसी भी सिटी में हो, किसी भी स्टेट में हो, इंडिया में आप कहीं पे भी हो, ओनली इन इंडिया आपके पास हमारे प्रोडक्ट्स डिलीवर होंगे और आप ऑफलाइन जाके भी जो आप इजीली ले सकते हो. सो दिस इज द बिगेस्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू इन नेक्स्ट 2 to 3 months. Really excited about that. Like even my relatives are using case gear ke cases, and they are loving it, so it's highly recommended for everybody watching this podcast. And yeah, this offline वाला thing is a big news. अब मैं इससे ही मेरे को clickbait मिल गया. अब ये मेरा इंट्रो होगा वीडियो का. So let's move to the next question. So like I have a very few people I know who are into manufacturing businesses and business of physical products like you are. So like tell me about what goes behind getting the products from a factory, or as you mentioned China, storage का क्या सीन होता है, और products को packaging मतलब कैसे होती है, logistics और website से मतलब वो experience कैसे बंदा करता है. Because I think even Ashneer in an episode of Shark Tank or somewhere in a podcast said that ki tech businesses are comparatively easier to build rather than businesses involving manufacturing and stuff, क्योंकि उनमें वो nitty gritties बहुत ज़्यादा आ जाती है manufacturing वाले businesses में. तो like how everything goes there. See, when it comes to a product business जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज़्यादा एक बेसिक होल्ड है उस चीज़ का, एक बिजनेस का होल्ड ही मैन्युफैक्चरिंग होती है सबसे पहले. अगर एक प्रोडक्ट बिजनेस है, सबसे ज़्यादा एक डिफिकल्ट चीज़ जो एक नॉट ओनली केस ब्रांड में बोलूँगा, लेकिन कोई भी ब्रांड अगर प्रोडक्ट में, दैट इज द सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स. और मैन्युफैक्चरिंग के बाद आपने मैन्युफैक्चर कर लिया तो आपको ये भी पता है कि मेरे पास इतना स्टॉक है, तो जो बैक स्टॉक होता है, डेड स्टॉक भी बोल सकते हैं, राइट? दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर एनी ब्रांड, राइट? अगर मैं एक नंबर दूं अभी, राइट, हम लोग पहली चीज़ तो बूटस्ट्रैप्ड, हमने कोई भी फंडिंग नहीं उठाई, कुछ भी हम लोगों ने नहीं किया. मैं अभी आई वुड से नेक्स्ट 2 years के लिए हम लोग कोई भी फंडिंग के बारे में नहीं सोच रहे. हम लोग सब कुछ जो है खुद ही करने वाले हैं. और मैं एक एग्जांपल दूं तो अराउंड 5 to 6,000 प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे जो अभी भी हमारे वेयर हाउस में आई वुड से डेड स्टॉक में बोल सकता हूँ उसको, राइट? तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है. और इट डजेंट मीन कि आपके पास 5-6,000 प्रोडक्ट्स है तो आप अच्छा नहीं कर रहे, राइट? अगर मैं और फिगर्स बताऊं बाकी ब्रांड्स की या जो भी प्रोडक्ट में है तो ये चीज़ होती है. लेकिन सबसे ज़्यादा इजी चीज़ क्या है कि आपको एक साइकिल मेंटेन करना होता है. अगर आप एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करो सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका प्रोडक्ट, जो पुराना प्रोडक्ट है, वो कैसे साथ साथ वर्क करेगा. बिकॉज इट इज़ लाइक डिपेंड करता है आप कौन से फील्ड में हो, कौन सी फील्ड में आप बिजनेस बना रहे हो. बिकॉज SKU इज द थिंग. कम लिमिटेड SKU में आप स्टार्ट कर रहे हो या आप क्लटर कर रहे हो मल्टीपल SKUs के साथ, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है. बट अगर मैं बात करूँ एक केस ब्रांड की, तो वहाँ पे मल्टीपल SKU हेल्प करते हैं चॉइस ऑफ द कस्टमर. शायद उसको अगर उन 10 में से पसंद नहीं आ रहा तो मे बी अगर मैं 50 ऑप्शन रख दूंगा तो 50 में से तो एक आप परचेज करके जाओगे,
राइट तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मेरे को ऐसा लगता है कि अगर जब भी आप मैन्युफैक्चरिंग की से स्टार्ट करते हो तो इट इज़ लाइक आपको वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग, अगर मैं बात करूँ इंडिया में जो केस ब्रांड्स हैं वो मैन्युफैक्चर नहीं कर रही हैं, शायद सिर्फ 2 ही ब्रांड्स होंगी इंक्लूडिंग अस जो मैन्युफैक्चर कर रही हैं प्रॉपरली। बट इट इज़ लाइक हम लोग भी खुद का प्रॉपर सेटअप करके मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, राइट। बट देर आर सम कॉन्ट्रैक्टर्स, मर्चेंट्स होते हैं, लेकिन 99% जितने भी ब्रांड्स हैं इंडिया में when it comes to cases and accessories, I'm being very particular here, वो सारी की सारी ब्रांड्स जो है क्या करती हैं, जो होल सेलर्स होते हैं, राइट, when it comes to चाइना और वो सब, वहाँ से वो सोर्स करते हैं और फिर सेल करते हैं। लेकिन जो लोग कॉन्ट्रैक्टर्स और मर्चेंट्स के साथ हैं, OEM हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे, तो उस केस में क्या होता है, वहाँ पे आपको क्वांटिटी इशू आता है। अगर कोई भी प्लान कर रहा है तो क्वांटिटी इज द बिगेस्ट चैलेंज दैट यू हैव टू फेस। और MOQ इज मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। अगर लेट्स से मैं आपसे कुछ परचेज करना चाहता हूँ तो मैं 5 यूनिट्स नहीं ले सकता या 10 यूनिट्स नहीं ले सकता। मेरे को पर्टिकुलर मॉडल के, लेट्स से अगर ये डिवाइस है मेरे पास, तो मेरे को इस पर्टिकुलर डिवाइस के मिनिमम 1000 to 2000 यूनिट्स लेने पड़ेंगे, और अभी ये एक कलर में लेने पड़ेंगे। यू हैव मल्टीपल कलर्स, राइट। तो मतलब 30-40,000 आपके पास जो है यूनिट्स वगैरह होने चाहिए, SKUs होने चाहिए इन टोटल। तो आप सोचो कि फिर आपका जो कैपिटल है, आपको जो इन्वेस्ट करना है एट फर्स्ट, वो कितना ज़्यादा होगा, राइट। वो फिगर्स मतलब आई वुड से लैक्स भी कभी कभी कम पड़ जाते हैं। अगर आप प्रॉपरली सेटअप कर रहे हो तो लैक्स भी कम पड़ते हैं। फिर आपको CR में बात करनी पड़ती है जब आप इनिशियली स्टार्ट करो। अगर आपका एक बड़ा प्लान है, अगर आपका छोटा प्लान है कि आपको थोड़ा बहुत ही सेल करना और आप ऐसे ही निकल रहे हो, तो फिर वो आपके लिए जो है इतना ईजी गोइंग हो जाएगा, क्योंकि आप लिमिटेड ही, आपका प्लान बड़ा नहीं है। बट हमारा विजन बड़ा है। एट डे 1 लव टोल्ड मी कि मेरे को इस पर्टिकुलर ब्रांड से कॉम्पीट करना है। सो आई टोल्ड हिम, पागल है क्या, क्या बात कर रहा है, वी आर हेयर फॉर अ शॉर्ट टर्म, राइट। सो मेरा इतना बड़ा प्लान नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे को ये था कि मेरे को मार्केट को टेस्ट करना है कि हम क्रैक कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। सो ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि भाई कर लेंगे हम लोग, कोई इशू नहीं है। एंड अभी भी इसलिए 60% 70% केस गियर को वही रन कर रहा है। इट इज़ ओनली 30% ऑफ द मी रनिंग केस गियर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मैं सिर्फ थोड़ा बहुत ही हैंडल करता हूँ कमिंग टू मार्केटिंग एंड ऑल दैट स्टफ, बट 70% वही। और जो बैकएंड, जो जिसने बैकएंड हैंडल कर लिया, वो आई वुड से ही इज द बैकबोन ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस। तो राइट, तो अभी लव ही है जो सारा कुछ हैंडल कर रहा है व्हेन इट कम्स टू केस गियर। अभी मैं उसमें कुछ नहीं कर रहा। बट अगर इस पॉडकास्ट के थ्रू अगर किसी को ये आइडिया आता है आपको स्टार्ट करना है, तो आपको 2-3 चीज़ें सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ेंगी कि अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग वाले बिजनेस में घुस रहे हो, तो जो आपका कैपिटल है, देन कमिंग टू वर्किंग कैपिटल, वो बहुत ज़्यादा होने वाला है, नंबर वो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। बिकॉज आप इतने ईजी गोइंग नहीं हो सकते कि आप बस यूँ सिंपली परचेज कर लो। अगर आपका लिमिटेड है, आप किसी भी होलसेलर से या फिर आपके बहुत सारे वेंडर्स आ जाते हैं फिर मल्टीपल कैटेगरीज में, आप उनसे परचेज करो, अपना एक मिनिमल प्रॉफिट रखो और आप आगे सेल कर दो। फिर वो आपका एक छोटा सा बिजनेस हो जाएगा जिसमें आप 2-3 लाख या 5 लाख का आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो पर मंथ। बट अगर आपका विजन बड़ा है कि आपको मल्टीपल लैक्स में या इन फ्यूचर आपको CR में भी टच करना है, तो आपको फिर उस लेवल पे ऑपरेट बिजनेस को करना पड़ेगा व्हेन इट कम्स टू मैन्युफैक्चरिंग। वरना इजी गोइंग आपको फिर वो वेयर हाउस वगैरह या वेंडर्स से ही सोर्स करके मिनिमल प्रॉफिट के साथ आपको जो है निकालना पड़ेगा। नहीं, great points, because to be honest, most of my connects on LinkedIn, my entrepreneur friends जितने भी है, most of them are building tech startups, have jobs in tech startups, या फिर सब tech में ही है, content भी create कर रहे तो it's online। but very few of my knowns, मेरे बहुत कम दोस्त हैं जो आपकी तरह जो manufacturing businessman, that's why manufacturing business really appeals me, because I think definitely it's more difficult, it's very difficult to crack the back end of manufacturing business, supply chain वगैरह crack करने में लोगों को 10-10 साल लग जाते हैं बड़े बड़े businesses को। हम लोग भी अभी प्रॉपरली सप्लाई चेन को क्रैक नहीं कर पाए हैं, राइट। देर आर सो मेनी एलिमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, राइट। आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उसके बाद द सेकंड बिगेस्ट चैलेंज इज QC। आपको क्वालिटी चेक पे ध्यान रखना। आप कुछ भी मैन्युफैक्चर कर रहे हो उसकी क्वालिटी सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये ऐसा है तो दूसरे वाले में थोड़ा सा डिफरेंस आज चल जाएगा, नहीं चलेगा बिल्कुल भी। थर्ड थिंग इज कि आपको पैकेजिंग देखना है, राइट। पैकेजिंग आपकी कैसे हो रही है, आप वहीं से जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वहीं से पैकेजिंग आपकी रेडी हो रही है, या फिर आप इंडिया में आके पैकेजिंग रेडी कर रहे हो। उसके बाद फोर्थ इज कि आपकी सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स, वो आपको हैंडल करना है। फिर जब इंडिया में आएगा आपको वेयर हाउस हैंडल करना है, एक टीम सेटअप करनी है, राइट। तो ये बहुत सारा एक लंबा प्रोसेस होता है जब हम एक मैन्युफैक्चरिंग वाले बिजनेस की बात करते हैं। अगर आप छोटे से स्टार्ट करोगे
तो आप फिर ऐसे भी कर सकते हो कि आपने एक स्टॉक उठाया किसी वेंडर से, अपने घर पे रख लिया और जैसे जैसे ऑर्डर्स आए आप डिलीवर करते गए, बट उसमें वो मज़ा ही नहीं है, वो किक ही नहीं है। अगर आपको कुछ बड़ा करना है, आपने प्लान कर लिया, आपको कुछ बड़े ब्रांड्स के साथ करना है, इफ यू सी we were not on Amazon, we went live yesterday, Saransh, on Amazon, right, on Amazon and Flipkart, but पिछले एक साल से केस गियर, अगर आप कीवर्ड मतलब इफ आई टॉक अबाउट कीवर्ड एंड एसईओ, तो ये केस गियर इतना पॉपुलर हो गया है कि हम लोग Amazon फ्लिपकार्ट पे नहीं है, लेकिन आई वुड से इस पर्टिकुलर कैटेगरी पे हम टॉप 5 में हम एग्जिस्ट ही नहीं करते, राइट। बट जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं और जितने भी बाकी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, हमारा कीवर्ड यूज कर रहे हैं, हमारे नाम से अपने आप को पुश कर रहे हैं, तो कर लो, कोई इशू नहीं है। बट अब हम लोगों को समझ आया कि हम लोगों को भी Amazon फ्लिपकार्ट पे आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हम लोग क्यों नहीं आ रहे थे उसका रीज़न ये था बिकॉज वी वांट टू मेक थिंग्स ईजी फॉर एवरीवन अप्रोचिंग अस, राइट। जो भी कस्टमर आ रहा है उनके लिए सारा कुछ परचेज करने में ईजी होना चाहिए, डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, तो हम लोगों ने अब वो चीज़ करी है। सो वी आर नाउ लाइव ऑन Amazon एज वेल एज फ्लिपकार्ट, तो आप वहाँ से भी जो है परचेज कर सकते हो। So these are the things you have to make sure. So this is also a great news पे आई एम वेरी एक्साइटेड, गुड न्यूज़ पे गुड न्यूज़ आ रही है। सो एंड एवरीबडी वेबसाइट से खरीदना है तो वेबसाइट से खरीदो, एंड नाउ केस गेयर इज ऑल्सो ऑन Amazon एंड फ्लिपकार्ट, तो जो आपको अच्छा लगे। खरीदोगे तो हमें नहीं, वेबसाइट से खरीदोगे तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, Amazon से खरीदोगे तो उतना प्रॉफिट नहीं होगा, तो बिल्कुल सही बात है, राइट। हाँ, ज़्यादा प्रॉफिट बड़ी MNC को जाएगा, तो आई वुड ऑल्सो रिकमेंड कि वेबसाइट से खरीदो। देयर इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क दैट गोज बिहाइंड, एक तो छोटी टीम है, एंड ऑल्सो दे आर डूइंग सो गुड, दिस इज रियली अप्रिशिएबल। और आपको इंडियन स्टार्टअप्स को प्रमोट करना चाहिए डेफिनेटली, दिस इज द एज ऑफ इंडिया कमिंग, तो ऑब्वियसली आप लोग वेबसाइट से खरीदो। तो मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा सरांश। हाँ बिल्कुल। मैं इस क्वेश्चन से पहले एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। सी, मेरे को बहुत सारे लोग ये चीज पूछते हैं, आई डोंट नो इफ इट्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन और नॉट, राइट, बट बहुत सारे लोग मेरे इंस्टाग्राम DM में या फिर कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे को मेल भी करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा प्राइवेट रहते हो, जैसे आपने भी ये चीज़ स्टार्ट करी थी कि आप मैं बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, मैं शायद इंस्टाग्राम पे उतना एक्टिव नहीं हूँ, ट्विटर पे भी इतना एक्टिव नहीं हूँ, यूट्यूब पे दैट इज़ वन थिंग जो मेरा मेन फोकस है, जहाँ पे मेरी वीडियोस रेगुलरली जा रही हैं, बट इट इज़ लाइक कि आपको क्या क्या डिस्कनेक्ट करना पड़ता है और कैसे क्रैक करना पड़ता है, यू डोंट गो टू पार्टीज एंड स्टफ लाइक दैट। हाँ, अभी फेस्ट हो रहा है या कोई कॉन्सर्ट हो रहा है, आप नहीं जा रहे वहाँ पे, सो इट इज़ लाइक कि अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो आपको वो चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, और ये एक मेरा एग्रेसिव साइड उस चीज़ में है। आप मेरे को जितना मर्जी कन्विंस कर लो, अभी मैंने चीज़ों को थोड़ा बहुत लेट गो करना शुरू किया है, बट जो भी 18 या 17 जिनकी एज है, या फिर इट इज़ लाइक कि 19-20 में भी अगर आप हो, तो ये चीज़ में एक सजेशन है कि इट इज़ नॉट लाइक कि यार आप सब छोड़ दो। जैसे मैंने वो चीज़ ऑब्वियसली करी थी बिकॉज एक तो लॉकडाउन भी था, मेरे को एडवांटेज मिला बाहर नहीं जाना, बट मेरे को कहीं ना कहीं वो चीज़ें समझ आ गई कि आप 100% ऑफ योर लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। आपको पैसे भी बनाने हैं, आपको फेमस भी होना है, आपको फेस्ट में भी जाना है, कॉन्सर्ट में भी जाना है, पार्टीज में भी जाना है, एंजॉय करना है, राइट। आप फ्रेंड्स के साथ घूम भी रहे हो, सब कुछ पॉसिबल नहीं है, आपके पास 100% आप कभी भी लाइफ में अचीव कर ही नहीं सकते, राइट। तो मेरा भी वही पार्ट था, मतलब 2 साल तक तो किसी ने मेरे को देखा भी नहीं था कि मैं अपने घर से भी बाहर निकला हूँ। जब मैं कंटेंट भी बना रहा था, मैं अपने घर से बाहर नहीं निकला। और बॉस, आपको अगर कुछ करना है तो आपको आपको अपने शेल में जाना पड़ेगा। अभी इट इज़ लाइक बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ शायद इंस्टाग्राम पे देखी भी होगी, एक बार बीच में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई थी, दैट गिव योर सेल्फ 6 months, राइट, प्राइवेट हो जाओ, वर्क हार्ड, मेक योर सेल्फ फिट, मेक योर सेल्फ हेल्दी, राइट, और वो सारी चीज़ें। तो वो एक टाइम ऐसा आएगा, अगर वो लेट आया तो शायद आपके लिए वो एक डिसएडवांटेज हो जाएगा, अगर जल्दी आ गया तो एडवांटेज हो जाएगा। जैसे कि सौरांश है, बहुत जल्दी आ गया, तो वो एडवांटेज ही एडवांटेज है। आप इस एज से स्टार्ट कर रहे हो। मेरे को तो अभी भी रिग्रेट है कि मैंने 19 से स्टार्ट किया। अगर मैंने शायद 17 या 16 से स्टार्ट किया होता तो अभी शायद बहुत ज़्यादा आगे होते, राइट। तो वही चीज़ है कि आपको कुछ ना कुछ तो यू हैव टू लीव फ्यू थिंग्स टू गेट फ्यू थिंग्स, राइट। और वो शायद जो आप अचीव करोगे वो ज़्यादा बड़ा होगा। अगर मैं अभी बोलूँ तो हैविंग एन आईफोन और हैविंग अ गुड मैकबुक और समथिंग, वो सक्सेस आपकी नहीं है, या फिर आपको लोग जानते हैं वो आपकी सक्सेस नहीं है। लेकिन आपके जो सराउंडिंग्स में चीज़ हो रही है, जो कि मैं अभी पब्लिकली बात नहीं कर सकता, मैं प्राइवेट रखता हूँ, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे बहुत सारे व्लॉगर्स होते हैं, कोई अभी मर्सिडीज ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, वो आपकी सक्सेस है।
कोई एक बड़ा घर बना रहा है, वो आपकी सक्सेस है। आप एक ब्रांड बना के आप पेरेंट्स को प्राउड कर रहे हो, आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हो, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को आप चेंज कर रहे हो, वो आपके लिए सक्सेस है, राइट? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप चाहो तो दोनों चीज़ें कर सकते हो। अभी कमिंग टू दिस थिंग, मैं कॉलेज भी जाता हूँ, राइट? तो दैट इज़ नॉट अ थिंग कि मैं अगर कॉलेज नहीं जाऊँगा तो मैं बिजनेस बना लूँगा, अगर कॉलेज जाऊँगा तो बिजनेस नहीं बनेगा, राइट? वो चीज़ नहीं है। अगर मैं बात करूँ एकेडमिक्स की, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वहाँ से मैं शायद वो सीख रहा हूँ जो मेरे इन फ्यूचर हेल्प कर रहा है। अगर मैं बात करूँ बिजनेस बनाने की, तो अगर मैं पर्टिकुलरली एकेडमिक्स में कुछ लर्न कर रहा हूँ अपनी फील्ड में, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से वो एक्सपीरियंस उठा के आगे डिलीवर करने में, राइट? तो सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो मेरे से ये पूछते हैं उनका एक सिंपल सा आंसर यही है कि एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि यार मेरे को अब स्टॉप करना है, अब मेरे को बाहर नहीं जाना, अब मेरे को फ्रेंड्स के साथ पार्टी नहीं करनी, या फिर गाड़ी में नहीं घूमना। तो वो सारी चीज़ें एक टाइम के लिए मैंने स्टॉप कर दी। मतलब मैंने तो शुरू से ही नहीं करी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट? मैंने 11-12 में भी इतना मैंने नहीं किया वो सब, बट आफ्टर 12th मैंने बिल्कुल सब कुछ रोक दिया। मैं 2 साल के लिए बाहर नहीं गया, नो पार्टी, मतलब फ्रेंड से भी नहीं मिला, किसी से भी नहीं मिला। ग्रेट पॉइंट्स एंड आई थिंक कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो ऑब्वियसली अगर बड़ा बिजनेस बनाना है तो डेफिनेटली पार्टीज़ को थोड़े टाइम के लिए इग्नोर करना ही पड़ेगा। एंड आई थिंक दैट पॉइंट इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट कि 18 से 22-23, आई थिंक ये जो 5 साल का फेज़ होता है, लाइक माई पेरेंट्स से दिस हमेशा टू कीप मी मोटिवेटेड, कि 18 से 22 के 4 साल वो होते हैं जिस टाइम पे बच्चा या तो अपना करियर बहुत अच्छा बना लेता है, स्काई रॉकेटिंग हो जाता है एकदम उसका सीन, या फिर इस टाइम पे वो पूरा बर्बाद हो जाते हैं। मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा। सी, यहाँ पे ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इट इज़ नॉट नाउ मैंने कुछ क्रैक कर लिया तो मैं अभी ये चीज़ आपको बता रहा हूँ, बट द थिंग इज़ कि अगर हम अभी की बात करें, एक बहुत सिंपल चीज़ है जो सब लोगों को पता है, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज अभी ले ऑफ आप लोग देख रहे हो कितने ज़्यादा हो रहे हैं, राइट? और अगर मैं बात करूँ नॉर्मली दिल्ली एनसीआर की, अगर मैं बात करूँ, अगर आप अभी अप्रोच करने जाओगे कहीं पे जॉब लेने के लिए, अगर आप जाओगे तो आप आपको, अगर मैं नंबर की बात करूँ तो आपको उतनी अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। या तो आपको कॉलेज में या आपको एकेडमिक्स में इतना अच्छा क्रैक करना है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं तो क्रैक करना पड़ेगा। आई एम नॉट दैट ग्रेट इन एकेडमिक्स, या मैं इतना अच्छा नहीं था कि मैं क्रैक करके 99% या 98% ला रहा हूँ। तो ऑब्वियसली आपको फिर आपका जो पैकेज होगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, फिर वो इतना डिसेंट, या फिर आप इतने अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपके पास जब हाथ में वो, आई वुड से, जो वो मंथली अर्निंग होगी ना, आप उसके बाद उससे कुछ भी बिल्ड कर सकते हो, आप फ्यूचर में बिजनेस बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन जो लोग अभी स्टार्ट करेंगे, लेट्स टेक, आप नॉर्मली आपके प्लान आपके दिमाग में सिर्फ यही है कि आपको अभी 22-23 तक ये कर लिया, उसके बाद आपने MBA भी कर लिया, वट एवर द स्टफ आप जिस भी फील्ड में कर रहे हो, उसके बाद कोई ना कोई जॉब पकड़ लेंगे, तो आपको बॉस उस लेवल की जॉब नहीं मिलने वाली जो आपको आज से 3 साल पहले मिलती थी। दिस इज वेरी मच क्लियर, राइट? अगर आप लेट्स टेक, अगर आपको 50,000 मिलने वाले थे पर मंथ, तो आपको वो शायद 20,000 ही मिलेंगे। और इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि क्योंकि आप देख रहे हो पोस्ट कोविड बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है सभी कंट्रीज में, राइट? और अगर मैं बात करूँ तो उस 20,000 से आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे, ये फैक्ट है, राइट? अगर एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ बात करूँ, आपको एक अच्छी गाड़ी भी चाहिए, राइट? आपको एक अच्छा घर भी चाहिए, आपको अच्छे कपड़े भी पहनने, आपको सब कुछ अपनी लाइफ में चाहिए, आईफोन भी चाहिए आपको, राइट? आपको फेमस भी होना है, कंटेंट भी बनाना है, सबका प्रॉब्लम का सोल्यूशन कहीं ना कहीं मनी है, राइट? आई एम नॉट सेइंग इट इज 100% द सोल्यूशन फॉर योर हैप्पीनेस एंड योर लिविंग द वे यू आर, राइट? ऑल दैट स्टफ, बट वो चीज़ नहीं है। बट मेन पॉइंट इज कि 70% तो सॉल्व कर रहे हैं ना मनी आपकी चीज़ें को, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो वहां पे क्या है कि अगर आप अभी बहुत इजी गोइंग हो कि यार जॉब में देख लेंगे, जॉब में फिर एक और चीज़ कर लेंगे, एक और डिग्री ले लेंगे तो और बढ़ जाएंगे, बट वो फिर आपको उसी लेवल पे आप ग्रोथ कभी नहीं देख पाओगे। आप बस कंसिस्टेंट चलते रहोगे कि आज 50 मिल रहे हैं तो शायद 1 साल बाद 70 मिल जाएंगे, उसके बाद 90 मिल जाएंगे। लेकिन हमको ये भी मेक श्योर करना है कि जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ रही है वैसे वैसे इंडिया भी ग्रो कर रहा है, वैसे वैसे डॉलर भी बढ़ रहा है, रुपी नीचे आता जा रहा है। तो ये इन्फ्लेशन डिफ्लेशन बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, राइट? आपको वो चीज़ नहीं पता चलेगी। पहले जो आप इक्लेयर्स खाते थे वो कितने की आती थी, आज इक्लेयर्स कितने की आती है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, राइट? या फिर आप पहले कोई भी चीज़ परचेज करो, लेट्स टेक अगर आप कोई शू ले रहे हो या आप स्निकर ले रहे हो, पहले कुछ था ही नहीं ट्रेंड में, बहुत सारी चीज़ें ट्रेंड में है, उसका प्राइस क्या चल रहा है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स टू टॉक अबाउट, बट इन जनरल आंसर इसका सिर्फ यही है कि अगर आप उसी पेस पे हो या आप सिर्फ जॉब के भरोसे हो तो फिर आप सिंपल हो। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है
जिन लोगों को कुछ सच में क्रैक करना है, एंड आई एम नॉट सेइंग भाई मैंने बहुत कुछ क्रैक कर लिया, आई एम ऑल्सो लर्निंग एवरी डे, राइट, एवरी डे मेरे को भी ग्रो करना है। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब चैनल खोल लिया, ये बिजनेस बना ली तो सॉल्व हो गया, बिजनेस कभी भी नीचे आ सकता है, यूट्यूब चैनल कभी भी हैक हो सकता है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड व्हेन यू आर ग्रोइंग, और ये एक ऐसा टाइम होता है कि आपको मल्टीपल ऑप्शंस अपने आसपास रखने पड़ते हैं, राइट। जस्ट लाइक यू, आपने एक वो चीज स्टार्ट करी विद्यावर्स, राइट, और आपने यहाँ पे पॉडकास्ट भी स्टार्ट कर दिया, आपके दिमाग में और भी बहुत सारी चीजें होंगी, तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस इस टाइम पे रखने पड़ेंगे। आप सिर्फ जॉब के भरोसे इस टाइम पे नहीं रह सकते। आज आपने जॉब करी, आप 6 महीने बाद किसी ने आपको निकाल दिया, तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। सो द बेसिक आंसर इज कि जो अपने 18 to 23 में है, मैं अभी खुद अपने इस फेज में हूँ, तो मैं भी यही कोशिश कर रहा हूँ, और मैं आपको भी जो मेरे से पूछते से उन्हीं को ये आंसर है कि आपको मल्टीपल ऑप्शंस अपने पास रखने पड़ेंगे। मैं चाहूँ तो अभी केस गियर से बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकता हूँ, मतलब इंटरनेशनल ट्रिप्स भी कर लूँ, और बढ़िया से बढ़िया स्नीकर्स भी ले लूँ, अच्छे कपड़े, ब्रांडेड कपड़े, महंगे से महंगे लग्जरी एंजॉय कर लूँ। बट द ओनली पॉइंट इज कि मैं एक और बिजनेस क्यों बना रहा हूँ, वो सर्विस बिजनेस क्यों चल रहा है, या फिर मेरे प्लान में मल्टीपल चैनल्स क्यों है। अभी एप्पल इन इंडिया एक चैनल है, दूसरा चैनल भी मैंने स्टार्ट कर दिया जिसमें 7-8 सब्सक्राइबर्स हैं। तो वो क्यों है? क्योंकि आपको मल्टीपल ऑप्शंस रखने पड़ेंगे। अगर एक चैनल हैक हुआ या कुछ आपने खराब कर दिया उस चैनल पे, तो आपके पास एक सेकेंड बैकअप है, राइट। सो द बेसिक आंसर इज कि सिर्फ जॉब पे डिपेंडेंट मत रहो। मैं ये नहीं बोल रहा जॉब बहुत ज्यादा खराब होती है, बट एंड आई एम ऑल्सो नॉट सेइंग कि आप बिजनेस ही स्टार्ट करो या कुछ स्टार्टअप में ही आ जाओ, लेकिन अपने पास मल्टीपल ऑप्शन जरूर रखो। एक ना एक स्किल सब में होती है, राइट। अगर मेरे में शायद वो डिलीवर करने की स्किल है, या फिर बैक ऑफ द माइंड में बिजनेस बनाने की स्किल है, तो इट डजेंट मीन कि सब में वो चीज़ होगी। आप में कुछ ना कुछ डिफरेंट जरूर होगा। मे बी आप एक अच्छे स्पोर्ट्समैन हो, या फिर आपके अंदर वो क्वालिटी कुछ ना कुछ ऐसी है, तो इन आई वुड से ऑल सेंस कि आपके पास एक स्किल वो जरूर होगी अंदर, जो आपको ढूंढनी है कि यार मैं ये चीज़ अच्छी कर सकता हूँ, और उसके बाद जॉब के साथ साथ आप वो चीज़ भी स्टार्ट कर सकते हो। Right. So ever since Instagram came out with reels, short form content has been booming like crazy. सब कोई, एक तो इंटरनेट इतना चीप है इंडिया में, एंड दिस इज लाइक एन एडिक्शन टू एवरीबडी, स्क्रोलिंग रील्स ऑल डे. सो हाउ यू कीप योर सेल्फ स्टिक टू primarily creating long form content, because that is your forte on the channel as well. And how what's your take on short form content and long form content in the bigger game, like in the end of all of this? So what is the one thing aspiring content creators should focus while creating long term audience through long term content? Because right now सबका फोकस तो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट पे, सब ट्रेंडिंग रील्स बना के फॉलोअर्स गेन करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? तो सरांश, सी इट इज लाइक कि बहुत सारे लोगों को इस टाइम पे फेमस होना है, राइट। ये एक बहुत कॉमन सी चीज़ है कि किसी को भी शॉर्ट बना लो, आप रील बना लो, आप फेमस हो जाओगे और आप बहुत जल्दी ग्रो करोगे। मतलब आप 3 साल में अगर लॉन्ग वीडियोस बना रहे हो, आप शायद उतने सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स नहीं गेन करोगे जितना आप शायद 10 दिन में या 15 दिन में कर लोगे। तो इट इज़ लाइक कि मेरे को ऐसा लगता है जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है वो थोड़ा सा टेम्परेरी है आपके लिए। वो जो सक्सेस है वो थोड़ी सी टेम्परेरी है, लोग आपके साथ उतना कनेक्ट नहीं करेंगे। अब मैं अभी अगर आप देखोगे तो मैंने जस्ट स्टार्ट किया शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, और मैंने इंस्टाग्राम पे स्टार्ट नहीं किया, मैंने वो भी यूट्यूब पे ही स्टार्ट किया, और उसके पीछे रीजन भी यही था कि सब लोग ग्रो कर रहे हैं उससे, राइट। नंबर्स बढ़ते हैं, आई वुड से व्हेन इट कम्स टू मेकिंग मनी एंड स्टफ लाइक दैट, तो शायद वो उतना बूम नहीं देगा आपको इन कंपैरिजन टू लॉन्ग वीडियोस, राइट। तो जो भी अभी स्टार्ट कर रहा है, आई वुड से एक तो बहुत सारे लोगों ने लॉन्ग वीडियोस बनाना छोड़ दिया, मेरे भी, हमारी भी कम्युनिटी में, एप्पल कम्युनिटी में बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे हैं जिन्होंने लॉन्ग वीडियोस को भूल ही गए हैं, राइट। और डिफरेंस कितना आया है सब लोगों को, मतलब जो मेरे चैनल पे लोग फॉलो करते हैं सबको ये पता है कि मैं लंबी वीडियोस बहुत सारी बनाता हूँ, राइट। मतलब ऐसा था कि मैं डेली पोस्ट कर रहा हूँ, बट अगर आप अभी चेक करोगे तो 2 से 3 दिन में एक वीडियो आ रही है। सो द रीजन इज कि एक तो वो कंटेंट भी नहीं है, और लॉन्ग वीडियो लोगों ने देखना बहुत ज़्यादा कम कर दिया। पीपल आर मोर लाइक कि स्क्रॉल कर लो बेटर है, राइट, क्योंकि 1 मिनट में आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वो नॉलेज मिल रही है। अब बहुत सारे लोग थोड़ा लेजी हो गए हैं, और वो इजी गोइंग है कि लॉन्ग वीडियो नहीं देखेंगे, 2 मिनट तक देखेंगे और उसके बाद स्किप कर देंगे। बट द मेन थिंग इज कि दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, लॉन्ग वीडियो की भी एंड शॉर्ट वीडियोस की भी। शॉर्ट वीडियोस में आप 1 मिनट में उतनी चीज़ें सीख रहे हो, लेकिन शायद उतना कनेक्ट नहीं कर पाओगे। बट व्हेन इट कम्स टू लॉन्ग वीडियोस में आप डिटेल में चीज़ों को समझ रहे हो। सो व्हाट आई थिंक इज कि डिपेंड करता है, अगर आप एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हो
तो शॉर्ट्स या रील्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है. बट व्हेन इट कम्स टू गोइंग डीप और ज़्यादा डिटेल में, और सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस या फिर ऐसी कोई भी चीज़ जो आप सीखना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आपको कोड सीखना है, कोडिंग या वेबसाइट बनाना, तो आप रील्स या शॉर्ट्स में से नहीं सीख सकते. तो डिपेंड करता है टोटली कि आप किस फील्ड में स्टार्ट कर रहे हो. अगर आप एंटरटेनमेंट, फनी वीडियोस वो सब कर रहे हो, या फिर आपको कोई भी चीज़ों के लिए पर्टिकुलरली अगर सोचना पड़ रहा है कि कैसे मैं डिटेल में इस कंटेंट लिखूं या क्या करूं, तो फिर वो लॉन्ग वीडियोस के लिए जाएगा, राइट. तो दोनों के अपने अपने प्रोज और कॉन्स हैं. बट मेरे को ऐसा लगता है लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग वीडियोस, और अगर आपको वो एक जल्दी सक्सेस और जल्दी फेम वगैरह चाहिए तो शॉर्ट वीडियोस. और मेरा एक टेक ये रहेगा कि आप बेटर है क्या स्टार्ट करो, आप दोनों जगह स्टार्ट करो. लॉन्ग वीडियोस पे भी स्टार्ट करो, शॉर्ट्स पे भी स्टार्ट करो, रील्स पे भी बनाओ. क्योंकि उससे क्या होगा, रील से आप ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाओगे, और ज़्यादा लोग जब आपके पास आ जाएंगे तब आप लॉन्ग वीडियोस पे उनको ले जा सकोगे, और वहाँ पे आप ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे, और वो आपका जो है वेपन होगा आगे ग्रो करने के लिए. सो दिस इज़ व्हाट आई थिंक राइट नाउ. No, I think this is a kind of a framework for all the aspiring content creators. Ki you can go with this particular strategy, and I think it is working for many creators right now as well. So, like as I told, that I'm always impressed by the consistency of the content that comes up on the channel. So, like, what are your opinions when it comes to being consistent on social media, and what are some key factors that might help emerging content creators grow and help them build their long-term game? See, first basic thing is consistency. और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अब कंसिस्टेंट होना क्यों ज़रूरी है, उसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में पहले बात करते हैं. बिकॉज कंसिस्टेंट इज लाइक, जब तक आप रोज वीडियोस नहीं डालोगे, नॉट ओनली यूट्यूब या फिर नॉट ओनली इंस्टाग्राम, आप किसी भी फील्ड में आप कुछ भी कर रहे हो, आप एक स्टार्टअप भी है आपका, अगर आप उस पर्टिकुलर चीज में कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, 2 दिन बिजनेस पे ध्यान दिया, तीसरे दिन आप लेजी हो गए, चौथे दिन आप वीकेंड पे घूमने चले गए फ्रेंड्स के साथ, तो चीजें वर्क नहीं करेंगी. तो एक बेसिक फैक्टर है, आप किसी भी फील्ड में, आप बिजनेस बना रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, एकेडमिक्स है या यूट्यूब है, कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, एक बेसिक चीज है, आपको कंसिस्टेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है. और कंसिस्टेंट होने की वजह से क्या होता है, जो आपके आसपास के लोग हैं जो आपको देख रहे हैं, उनको रेगुलरली आपके बारे में पता चल रहा है, आपके बिजनेस के बारे में पता चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, राइट. लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर जोमेटो है, अगर वो आपको एक दिन एक नोटिफिकेशन भेज रहे हैं कि आज आप ये ये खा लो आप, राइट, और आप वो सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे आपको वो नोटिफिकेशन नहीं भेजेंगे, तो उनका बिजनेस उस तरीके से रन नहीं करेगा. वो आपको अगर 4 दिन रेगुलर नोटिफिकेशंस भेजेंगे, तो शायद 4 दिन में से एक दिन आप कुछ ऑर्डर कर लोगे, राइट. तो कंसिस्टेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है. कमिंग टू की फैक्टर्स और की फीचर्स ऑफ कंटेंट क्रिएशन, और कैसे हम ग्रो कर सकते हैं, राइट. तो कंसिस्टेंसी मैंने बता दिया. सेकंड चीज क्या है कि किसी को कॉपी मत करो, राइट. आजकल कॉपी एक बहुत ही ज्यादा इजी गोइंग ट्रेंड है. किसी की शॉर्ट्स देखी, सेम बनाया और कैप्शन में लिख देंगे कॉपीड फ्रॉम, और ये बहुत इजी है, आप व्यूज भी ले लोगे. लेकिन आप डिफरेंट किसी से कब होगे, जब आप कुछ डिफरेंट बनाओ. अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग बोलना बहुत ज्यादा आसान है कि आप कुछ डिफरेंट बनाओ, लेकिन डिफरेंट बनाना इज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट, राइट. तो आप डिफरेंट आपको बहुत ज्यादा ढूंढना पड़ेगा. तो इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर आप सेम चीज भी बना रहे हो, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, अगर आईफोन 13 के ऊपर भी कोई वीडियो बना रहा है, राइट, तो आईफोन 13 के ऊपर मैं भी बना रहा हूं, आप भी सेम चीज बना रहे हो, लेकिन आप मेरे बोलने के तरीके से कैसे डिफरेंट हो सकते हो, या फिर अगर मैं सिर्फ बैठ के वीडियोस बना रहा हूं तो आप मल्टीपल लोकेशंस में बना सकते हो, राइट. तो डिफरेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है. सेम वे अगर टेक से हटके या कंटेंट से हटके अगर बिजनेस की बात करें, अगर मैं कोई चीज सेल कर रहा हूं, मैं कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं, तो अगर मेरे पास कोई यूएसपी है, तो आप ये सेम यूएसपी पे आप नहीं चल सकते. यूएसपी इज यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, राइट. तो अगर आपके पास वो यूएसपी है और आप मेरी सेम यूएसपी कॉपी कर रहे हो, तो आपको कोई फायदा नहीं है, आप वापस से गिर जाओगे नीचे, राइट. तो आपके पास अगर कोई और यूएसपी है, बी इट प्राइस और बी इट क्वालिटी, अगर वो आपके पास यूएसपी है, तो मतलब बेसिकली डिफरेंट होना जरूरी है आफ्टर कंसिस्टेंसी. और थर्ड चीज मेरे को ऐसे लगता है कि यू हैव टू बी फोकस फर्स्ट, राइट. मतलब फोकस इन टर्म्स ऑफ लेफ्ट राइट नहीं देखना बिल्कुल भी. कमेंट्स क्या आ रहे हैं, या फिर दूसरे लोग कैसा बिजनेस कर रहे हैं, वो हमसे कितना ऊपर है या फिर कितना हमसे नीचे है. तो अभी एक अगर रीसेंट एग्जांपल दूं, एक टाइम था ऐसा कि जिस टाइम पे आई वुड नॉट से आई वुड बी नंबर 1 और नंबर 2, बट
शायद मेरा चैनल जो है इस पर्टिकुलर कम्युनिटी में नंबर 3 या नंबर 4 रैंक कर रहा था, और मेरे को पता था कि एवरीवन इज वाचिंग मी फर्स्ट, राइट, और लेटर ऑन वो बाकी सारे लोग जो है मेरे से नंबर्स वाइज भी और व्यूज वाइज भी जो है थोड़ा सा पीछे थे, राइट। बट अभी क्या है, आई गेस मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया कंटेंट से, मैंने थोड़ा बिजनेस पे ज्यादा फोकस किया, तो अभी मैं पीछे हूँ, वो लोग आगे हैं। तो राइट, फोकस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब फोकस ड्रॉप होगा चीजें पीछे हो जाएंगी और वो आगे निकल जाएंगे, राइट। तो मेरा इसलिए ऐसा है बिकॉज मैं बहुत सारी मल्टीपल चीजें कर रहा हूँ, राइट। आई डोंट हैव अ बिग टीम कि सब कुछ एक साथ वर्क करे मेरे लिए, राइट। तो उस केस में अगर आप एक जगह से ड्रॉप कर रहे हो, बट मेरा फिर ड्रॉप होने का रीजन ही यही था कि मैं अगर रोज वीडियो डाल रहा था, मैं फिर रोज नहीं डाल रहा, मैं 2 या 3 दिन में एक बार वीडियो डाल रहा हूँ, राइट। बिकॉज आपको फोकस फिर उतना भी ड्रॉप नहीं करना कि चैनल ही बंद हो जाए। तो ये 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट, अगर आप ग्रो कर रहे हो और आप अगर स्टार्ट कर रहे हो तो कंसिस्टेंसी और एक डिफरेंट होना और फोकस, ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें। Great points, and I think all of the explanation is very accurate, and aspiring content creators should definitely focus on these 3 points. And I think I loved that focus point. I think definitely when you lose focus, the numbers would definitely go down, and I think that was a great point. Okay, so let's take a turn towards production of the content, and how does all of it work. So like, when was the time when you build your first studio, or let's talk about the whole timeline, like how you like how the journey has been in the last 2-3 years. And I would love to tell everybody that behind all of this, like behind the business, behind the channel, there's also a backbone that Lakshay has, who is his twin brother Love. So basically, let's break down this into 3 parts. So how do you produce content at your studio, and how big is the team right now? Second, what is the role of Love, because we don't see him in front of the camera. I think he hasn't been on the camera for even once, I guess. And third, what are some key, but also we cannot even guess whether Love is making video, like am I doing this podcast with Love or Lakshay? So and third, what are some key differences you have personally felt before versus after, like having a studio to produce amazing content? Like how was it difficult back then, or is it difficult now, because you need to arrange so many things? अभी लाइट देखनी पड़ती है, अभी यार और भी बहुत सारी चीजें, you definitely know the nitty gritty. तो कैसे all of it goes? सी सबसे पहली चीज यू मेंशन वाज अबाउट लव, राइट। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम रहा है, राइट, बी इट बिजनेस और बी इट कंटेंट क्रिएटिंग। तो इट इज़ लाइक कि मैंने भी धीरे धीरे चीज़ों को ब्रेक डाउन किया, राइट। अभी 60% आई वुड से 60% चीज़ें वो हैंडल करता है, 40% चीज़ें मैं हैंडल करता हूँ, राइट। बट स्टार्टिंग में ऐसा था कि मैं 70% हैंडल करता था, वो 30% हैंडल करता था। सो नाउ ही हैज़ टेकन, राइट, दैट पार्ट। सो बेसिकली यार इट इज़ लाइक कि अगर व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्शन ऑफ द थिंग्स, अगर पहले की बात करें, अभी की बात करें, तो पहले इट वॉज नो टीम, नथिंग, राइट। सिर्फ मैं था, और behind the camera it was Love who was adjusting the angle and everything. और it was like, see, आपको ना सेम चीज़ कि आपको अगर कंटेंट डिलीवर करना, आपको 100 या 1 लाख लोगों के सामने आना है, तो आपको ये नहीं सोचना कि मैं कैसे लग रहा हूँ, राइट, या फिर मेरे पीछे क्या है, मेरे आगे क्या है, लेफ्ट राइट क्या है। आपको जो आप बोल रहे हो, जो लोग सुन रहे हैं, आपको उसमें डिफरेंट होना है, उसमें आपको क्वालिटी प्रोड्यूस करनी है। अगर मैं अपनी बिल्कुल एग्जैक्टली बताऊं तो आई स्टार्टेड विद माय बेडरूम, राइट। मेरे पास कोई लाइट नहीं थी, शायद एक रिंग लाइट से मैंने स्टार्ट किया था, बट मेरे पास एक DSLR था, बट वो इतना पुराना था कि वो क्वालिटी मैच नहीं कर रहा था यूट्यूब पे आने के लिए। सो आई स्टार्टेड विद माय फ़ोन, राइट। आई हैड एन आईफोन, आई हैड दैट प्रिविलेज कि मेरे पास आईफोन था। बहुत सारे लोगों के पास आईफोन नहीं होगा, बीइंग वेरी ऑनेस्ट हियर। तो आईफोन होना भी ज़रूरी नहीं है फॉर स्टार्टिंग यूट्यूब, और आप रील्स बना रहे हो कुछ भी। बट मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप कंटेंट बना रहे हो तो आप जो डिलीवर कर रहे हो उसमें दम होना चाहिए। आपके लेफ्ट राइट लोगों को नहीं पता होता, राइट। एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दूं तो एवरीवन नोज मनोज दे, राइट। एक टेक, आई वुड से मोर ऑफ टेक कंटेंट क्रिएटर है। आप उनकी 10 साल पुरानी वीडियोस उठा के देख लो और उनकी अब की वीडियोस देख लो, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इनफैक्ट आप मेरी भी देखोगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। शायद मैंने अब प्राइवेट कर दी, राइट। बट उसके बाद चीज़ें कैसे चेंज हुई, सो इट वॉज लाइक फर्स्ट 10K मेरे लिए इट वॉज लाइक एक स्ट्रगल था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं कभी बेडरूम में हूँ, कभी मैं अपने लिविंग एरिया में हूँ, कभी मैं टेरेस पे बना रहा हूँ, तो वो बहुत मिक्स था। और
इट वॉज मोर लाइक कि लॉकडाउन था और थोड़ा कोविड का वो था, तो मेरे को घर से नहीं निकलना था, राइट, सबके साथ ये चीज़ थी, तो बेसिकली मैंने वहीं से स्टार्ट किया. बट द बिगेस्ट सपोर्ट वॉज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो थी ब्रांड्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, not in terms of monetary things, right, or financial support, but it was more like that they were backing me. I would say कि उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट था. वो 1 to 10 के इतनी जल्दी कोई भी ब्रांड्स नहीं आती, राइट, और they were like कि we are standing behind you, so in every 2 or 3 videos, so it was like कि they were supporting. और उस चीज़ें से उस तरह से फिर चीज़ें चेंज हुई. जब आपको कोई ब्रांड सपोर्ट करती है तो आपका कंटेंट बढ़ता है. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो ब्रांड सपोर्ट कर रही थी वो इसी कम्युनिटी की थी, एप्पल कम्युनिटी की थी, राइट. तो वहाँ से जब चीज़ें चेंज हुई, वहाँ से जब कंटेंट इंक्रीज हुआ, क्वालिटी ऑफ कंटेंट इंक्रीज हुआ, तो बहुत सारे लोगों ने जुड़ना शुरू किया. फिर इट वॉज 10K बहुत ज़्यादा जल्दी होता है. 10K पे मैंने अपना स्टूडियो बिल्ड किया, राइट, एंड वो भी अपने घर पे ही, 3rd फ्लोर पे. उसका रीज़न यही था कि मेरे को पता था कि मैं सारा कुछ कर रहा हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होना है, मेरे को बिजनेस भी हैंडल करना है, मेरे को 2 बिजनेस में चला रहा हूँ. उसके बाद 3rd चीज़, मेरे को कंटेंट भी बनाना है डेली, सारी चीज़ें मैनेज करना है, मेरे को कंसिस्टेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो वो एक चीज़ थी. और मेरे को लगता है कि अगेन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्टूडियो बनाने से सिर्फ डिफरेंस ये आता है कि जो लोग आपको पहले से जानते हैं, राइट, दे विल फील गुड कि यार मैं इसको बहुत टाइम से देख रहा हूँ और इसने अब ग्रो किया तो एक स्टूडियो सेटअप कर लिया है, राइट. बट जो लोग आपको नॉर्मली देख रहे हैं वो आपकी क्वालिटी ऑफ वीडियो देखेंगे कि अच्छी है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक कर देंगे, राइट. बट वो एक बहुत बड़ा फैक्टर नहीं रहेगा कि आपने स्टूडियो बिल्ड कर लिया. ऑब्वियसली मेरे लिए, मेरी जर्नी में एक बड़ा फैक्टर है, बट अगर कोई बाहर से आपके बाहर से आके आपको देख रहा है तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है. अगेन कमिंग टू द बेसिक कि आप जो कंटेंट डिलीवर कर रहे हो उसमें क्वालिटी होना, उसमें कुछ डिफरेंट होना, वो मैटर करता है. कितना आपकी क्वालिटी का, आई वुड से रेजोल्यूशन, अगर थोड़ा डिटेल में जाएं, रेजोल्यूशन क्या है या कहाँ से लाइट्स आ रही हैं, वो इतना बड़ा फैक्टर नहीं है. बट येस, वो जो आपकी ग्रोथ की पेस है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है अगर आप स्टार्ट करते हो तो. Right. So definitely, like you talked about production. So like there are months of planning and days and endless hours that goes behind writing content, recording, post production stuff, everything. So like this is my question to you as just content creator. Like, do you feel burned out sometimes, or how, if so, like how you overcome that? And because I feel there is this phase that often comes in the life of creators, because 24 घंटे कंटेंट के बारे में सोच रहे होते तो कभी कभार वो बर्नआउट हो जाता है. सो लाइक व्हाट आर सम की थिंग्स यू हैव डेवलप्ड ओवर दीज ईयर्स टू स्टे अवे फ्रॉम दैट काइंड ऑफ फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस कि यार आइडियाज़ ही ख़त्म हो गए दिमाग में, अब क्या बनाऊँ क्योंकि हर 2 दिन में एक वीडियो डालनी है, या फिर इन द इनिशियल फेज रोज़ एक वीडियो आ रही थी. तो लाइक how you work on creating a timeline for weeks ahead, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि अच्छा यार हाँ ठीक है आज की वीडियो आज ही बना के आज ही एडिट होके डल जाएगी, ऐसा तो नहीं होता है. इट इज़ लाइक कि हाँ मेरे को अगले 1 महीने का सोच के चलना है. तो लाइक हाउ ऑल ऑफ दिस प्रोसेस गोज. सो सी, बेसिकली देयर आर 2 थिंग्स, राइट. एक लोग ऐसे होते हैं जो कंटेंट लिखते हैं उसके बाद डिलीवर करते हैं उस तरीके में, तो दैट इज़ टाइम कंज्यूमिंग फॉर श्योर. और सेकेंड इज़ लाइक कि आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हो उसके बाद खुद डिलीवर करते हो, राइट. तो जब हम चीज़ों को स्क्रिप्ट करते हैं, स्क्रिप्ट करना इज़ इंपॉर्टेंट, राइट, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन अगर आप पूरी स्क्रिप्ट को कॉपी करके आप पेस्ट करोगे कैमरा के सामने तो वो कभी भी वर्क नहीं करेगा. ये मेरा मतलब आई वुड से अब तो 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो गया. जो लोग स्क्रिप्ट करके बोलते हैं, राइट, दैट फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज़ लक्ष्य और मैं माई नेम इज़ लक्ष्य बोल रहा हूँ, बट अगर मैं माई नेम इज़ लक्ष्य को अपने तरीके से डिलीवर नहीं करूँगा तो शायद वो लोगों को पसंद नहीं आएगा. तो वो सबसे पहली चीज़ है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप स्क्रिप्ट कर रहे हो और आप कैसे डिलीवर कर रहे हो. तो कभी भी स्क्रिप्ट करके डायरेक्ट डिलीवर मत करो, मतलब पढ़ के मत बोलो आज ये पढ़ा और ये डिलीवर कर दिया कैमरा के सामने. वो आपके अंदर जो है ना, आपके अंदर जो स्किल्स हैं वो बाहर नहीं लाएगा, राइट. एंड अगेन अगर मैं स्कूल की भी बात करूँ, मैंने कभी स्कूल में कोई ऐसा कुछ नहीं किया जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा स्पीच दे रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ और मेरे अंदर मैंने खुद रिकॉग्नाइज नहीं करी थी वो स्किल कि मैं इतना अपफ्रंट होके ये उस पर्टिकुलर चीज़ को मैं लीड कर सकता हूँ. बट जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे को, अगर मैं अपनी पुरानी वीडियो उठाऊँ तो मेरे को पता है मेरे में कितना बड़ा डिफरेंस आया है, राइट. आज अगर आप मेरे सामने 10,000 या 1 लाख लोग भी खड़े कर दोगे, मैं सेम लेवल से बोल सकता हूँ, सेम एनर्जी से बोल सकता हूँ. सो दिस इज द थिंग और दिस इज द चेंज जो आप अपने अंदर देखते हो एंड ढूंढते हो. और आप स्क्रिप्ट, अगर मैं बात करूँ तो
स्क्रिप्ट लिखना एंड देन डिलीवर करना, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स. तो अगर कोई भी अगर कंटेंट क्रिएटर भी देख रहा है या फिर कोई स्टार्ट भी करना चाहता है, तो आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप अंडरस्टैंड करो चीज़ों को जो आप डिलीवर करना चाहते हो. अगर आप अंडरस्टैंड करके डिलीवर करोगे तो शायद आप वन शॉट में भी चीज़ों को ख़त्म करोगे. सेकेंडली, अगर आप आई वुड से पढ़ के बोल रहे हो, ज़्यादा टेक्स लोगे, वो सारी चीज़ें होंगी, तो बेटर है कि चीज़ों को अंडरस्टैंड करो और फिर डिलीवर करो. आप जो ओरिजिनल आप हो वो बाहर आएगा एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. अगर आप खुद ओरिजिनली बाहर नहीं आओगे तो लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे एंड इवेंचुअली क्या होगा कि एक बार देखेंगे, दो बार देखेंगे और थर्ड टाइम आपको वो नहीं देखेंगे. सो दैट इज़ द बेसिक थिंग. Right. I think in the previous question also you talked about how we can differentiate from other creators to to make our own USP. I think exactly storytelling is a skill, and I think storytelling doesn't come from reading script and performing. I think वही storytelling तभी आ सकती है जब आपको किसी टॉपिक के बारे में पता है और फिर वो अपने आप अंदर से आता ही है बोलने का. I think that is the art of storytelling, and I think yeah, that was a great point. एंड सेकेंडली, बहुत सारे लोग, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू इन बिटवीन, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इंटरेस्ट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? क्योंकि अब बहुत सारे लोग मेरे को देखते हैं कि मेरे पास एक लेटेस्ट आईफोन है या फिर मैं ये अच्छा कर रहा हूँ या मैं वो अच्छा कर रहा हूँ, तो इट डजेंट मीन कि मैं यूट्यूब से इस पर्टिकुलर फील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, राइट? अभी द थिंग इज कि लोग ऐसे करते हैं कि यार इस फील्ड में, फॉर एग्जांपल लेट्स से टेक में बहुत ज़्यादा पैसा है तो टेक में स्टार्ट कर देते हैं, और आपका इंटरेस्ट नहीं, आपको ये भी नहीं पता कि फ़ोन के अंदर रैम क्या होता है या कैमरा का मेगापिक्सल कितना, अगर आपको वो भी नहीं पता, आप स्टार्ट कर रहे हो सिर्फ पैसा कमाने के लिए, तो वो कभी भी आपके लिए वर्क नहीं करेगा. इंटरेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर, और ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे अंदर वो चीज़ थी, आई एम यूजिंग आईफोन, मतलब 4S जब आया था मैं तब से आईफोन्स यूज़ कर रहा हूँ. बीच में ब्रेक था, मैंने रेगुलरली परचेज नहीं करे, बट स्टिल मेरे अंदर वो एक चीज़ थी और मैंने वो चीज़ के साथ स्टार्ट किया और मेरे को लगा कि मैं डिलीवर कर सकता हूँ, क्योंकि इस स्पेस में बहुत सारे लोग नहीं है अभी, राइट? अभी भी नहीं है इनफैक्ट, बट जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतने ज़्यादा फिर वो स्पेस भरेगी. बट अगेन बैक टू द बेसिक्स, यही है कि अगर आप आई वुड से इस पर्टिकुलर स्पेस में हो और आप उस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है तो तभी उस चीज़ को स्टार्ट करो. अगर वैसे बिना इंटरेस्ट के स्टार्ट करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन चला लोगे या 20 दिन, आप कंसिस्टेंट नहीं हो सकते और वो फोकस, वो एनर्जी के साथ आप डिलीवर नहीं कर पाओगे कभी भी. Right. So like we have definitely talked a lot about consistency and stuff. So like let's move on a little bit and let's talk about algorithm. So like what's your take on how to beat the Instagram and Facebook algorithm? जैसे सब बोलते हैं कि यार YouTube के पीछे बहुत बड़ा algorithm है, Instagram का algorithm तो एकदम ही हालत ख़राब कर देता है क्रिएटर्स की, व्यूज़ नहीं आते. So like what's the secret sauce to growing in this super saturated yet very empty market for new creators? तो लाइक ऐसा क्या है जो एल्गोरिदम को बीट करने में हेल्प करता है? सी, एल्गोरिथम पहली चीज़ कभी भी क्रिएटर्स के लिए नहीं होता, राइट? एल्गोरिथम हमेशा ना बैक एंड में जो टीम है ना उनके लिए होता है कि कौन सी वीडियो को पब्लिश करना है, कौन सी वीडियो को पुश करना है उस लेवल पे, उस पे डिपेंड करता है. तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, मतलब एक तो लोगों का माइंडसेट थोड़ा सा इस चीज़ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा खराब है कि एल्गोरिथम क्या है, अगर हमने एल्गोरिथम सीख लिया या पकड़ लिया या क्रैक कर दिया तो हम ग्रो कर जाएंगे. बट दैट इज़ नॉट द थिंग. एल्गोरिथम कभी भी क्रिएटर्स के लिए या फिर जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके लिए कभी भी एल्गोरिथम है ही नहीं. देयर आर 2-3 थिंग्स जिस पे आपको फोकस करना है, राइट? बट एल्गोरिथम इज लाइक, मैं एक एग्जांपल दे दूंगा. यूट्यूब का एल्गोरिथम इज लाइक फर्स्ट 30 मिनट्स में आपकी वीडियो जितना अच्छा परफॉर्म करेगी यूट्यूब उतनी अच्छी रीच आपको प्रोवाइड करेगा, राइट? या फिर आपका आई वुड से जितना आपका थंबनेल होता है एक, राइट? अगर एक थंबनेल आपका जितना ऑर्गेनिक रहेगा उतने ज़्यादा चांसेस है कि आपके क्लिक ज़्यादा आएंगे वीडियो पे. अगर आप जितना ही आप फोटोशॉप में बनाओगे, बाकी सारी चीज़ें करोगे या क्लिक बिट करोगे, वो सारी चीज़ों से क्या होगा कि आपकी वीडियो उतनी ज़्यादा रीच नहीं मिलेगी वीडियो को. तो कमिंग टू दिस थिंग, मेरे को ऐसा लगता है कि आपको 2-3 चीज़ों पे फोकस करना है. जैसे अभी मैं इस चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ टाइम, बट मैंने पूरे एक साल, मतलब 365 डेज मैंने वीडियोज़ डाली हैं, राइट? और मेरा एक फिक्स टाइम था, दैट वॉज 8:30, राइट? सो 8:30 PM मेरे को ऐसा था कि बी इट आई वुड से अगर हम लोग कोई पढ़ भी रहा है, राइट, बाद में फिर ट्यूशन से घर भी आ रहा है, तो वो 8:30 के बाद ज़्यादा स्ट्रेच नहीं होगा, राइट? अगर कोई बिजनेस से भी आ रहा है, कोई जॉब करके भी आ रहा है, तो वो एक स्पेस होता है जब हम अपना फ़ोन मैक्सिमम यूज़ करते हैं. सो दैट इज़ आफ्टर 8:30 till 10.
अगर मैं एक जर्नल बात करूँ तो वो 10 तक होता है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को उसी टाइम पे डिलीवर करना है आफ्टर 8:30, दिस इज द पीक टाइम। अगर मैं एंटरटेनमेंट की बात करूँ, इंस्टाग्राम रील्स की बात करूँ, तो आफ्टर 5:30 बेस्ट टाइम है करने के लिए। तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पे, मतलब मेरा खुद का एग्जाम्पल है, कुछ भी क्रैक करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि गूगल पे यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि क्या एल्गोरिथम है इंस्टाग्राम का या फिर यूट्यूब का, कि हम इस तरीके से हमारी वीडियो, आप सिर्फ मैक्सिमम लेवल पे ये कर सकते हो कि आपकी वीडियो की रीच कैसे बढ़ेगी, राइट। आपको बस वो क्रैक करना है। अगर आप बैक ऑफ द माइंड यूट्यूब को क्रैक करने की कोशिश करोगे, वो आप कभी भी नहीं कर सकते, राइट। वो लोग, इतने सारे लोग हैं, अगर लेट्स टेक a group of 100 people are trying to crack one thing, right, it is not possible, because जो उस चीज को क्रैक करके उस आपके कंटेंट को पुश करने वाला है वो लोग भी पागल नहीं है, राइट। तो वो एक बहुत बड़ी डिफरेंट चीज है कि आपको अपने तरीके से चीजों को बेटर करना है। तो एक अच्छा सा एग्जांपल मेरा खुद का यही है, जब मैं कंसिस्टेंटली वीडियोस डाल रहा था, मैंने 365 डेज वीडियोस डाली हैं, राइट। तो उसमें मैंने एक चीज जो सीखी थी वो ये थी कि बेस्ट टाइम क्या होता है हम जब ऑडियंसेस को अपना कंटेंट दिखा सके। तो दैट वाज आफ्टर 8:30, मतलब इट वाज लाइक 8:30 हुआ और मैं पब्लिश पे क्लिक कर देता, मेरी वीडियो 8:30 एग्जैक्ट आती थी। और उससे क्या होता था कि लोगों को मेरी आदत पड़ गई थी कि 8:30 लक्ष्य की वीडियो आनी है और उस टाइम पे ये वीडियो हम लोग जो है देखने वाले हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपको लोगों को जो है अपनी आदत डालनी पड़ेगी, राइट, कि वो आपकी वीडियोस देख रहे हैं। और उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपका कंटेंट या कोई वीडियो अच्छी भी नहीं है ना, वो तब भी देख लेंगे, बिकॉज उनको वो उस चीज़ की आदत पड़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर आपको पता है कि रोज 9 PM पे एक शो आना है जो आप रोज देख रहे हो, कभी अगर वो एपिसोड अच्छा भी नहीं होगा आप तब भी देखोगे, बिकॉज आपको आदत पड़ी हुई है, आपके पास कोई और चीज़ नहीं है करने के लिए। तो इट इज़ लाइक कि आपको अपनी आदत आपके जो आसपास लोग हैं जो आपको देख रहे हैं उनको डालनी पड़ती है। एंड सेकेंडली जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही टाइम क्यों पर्टिकुलरली, क्योंकि ऐसा होता है, अगर मैं बात करूँ जो स्कूल गोइंग है, राइट, कॉलेज गोइंग है, या फिर लेट्स से जो ऑफिस जा रहे हैं, या फिर जो बिजनेस, एवरीवन हैज़ अ टाइम टू रिलैक्स, राइट। एवरीवन हैज़ दैट पर्टिकुलर टाइम जिसमें वो फ़ोन को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो मैंने वो चीज़ क्रैक करी। मेरे को ऐसा लगता है कि आफ्टर 8:30 इट इज़ लाइक either people will have their dinner, right, or they will finish their dinner and swipe up and all that stuff। तो वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको वो टाइम पकड़ना है जिस टाइम पे वो अपने फ़ोन को मैक्सिमम यूज़ कर रहे हैं या फिर यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे हैं। तो मैंने उस चीज़ को क्रैक किया वहाँ पे, और मैंने रेगुलरली 8:30 PM पे वीडियो डाली, और वहाँ से ये था कि मेरी कंसिस्टेंसी प्लस मेरे जो व्यूज़ हैं वो डेली 20% से इंक्रीज़ हो रहे थे। तो वो एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि YouTube को भी पता चल रहा है कि 8:30 पे ये वीडियो पर्टिकुलरली आनी है, और उसके बाद YouTube को वो चीज़ पुश करनी है। और अगर मैं एल्गोरिथम की बात करूँ तो 2-3 चीज़ें ही सिर्फ होती है, जैसे कि YouTube में होता है कि फर्स्ट 30 मिनट्स में अगर वीडियो की एक रैंकिंग होती है 1 to 10, अगर वो वीडियो 1 to 10 में अच्छे नंबर पे रैंक कर रही है आपके एनालिटिक्स में, तो YouTube उसको और पुश करेगा और लोगों तक पहुंचाएगा। अगर नहीं कर रही तो YouTube उसकी रीच जो है रोक देगा। सेम वे Instagram पे क्या होता है, जैसे अब Instagram का एल्गोरिथम अभी क्या चेंज हुआ था कि अगर लोग सेव कर रहे हैं आपकी रील को, राइट, तो उसकी रीच और ज़्यादा बढ़ेगी। वरना आजकल 2-3 हज़ार 10,000 रील आप कुछ भी डालोगे रील पे व्यूज़ आ जाएंगे, राइट। लेकिन जिसके 1 मिलियन 2 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं ना, वो अच्छा काम कर रहा है, वो कुछ डिलीवर कर रहा है। वरना मैं कोई भी आई वुड टेक एनी सॉन्ग, आई वुड पुट दैट इनटू माय रील और व्यूज़ आ जाएंगे। दिस इज़ वेरी सिंपल दीज डेज, राइट। बट हमको क्या करना है कि आपको ये मेक श्योर करना है कि आप पर्टिकुलरली चीज़ों को कैसे क्रैक कर रहे हो। वो एल्गोरिथम यही है। जैसे सेव करना है, तो सेव लोग तब करते हैं जब वो फ्यूचर में उनके लिए यूजफुल हो, राइट। अगर मैंने फॉर एग्जांपल बोला कि आपको ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट इस टाइम पे लेट्स टेक सितंबर में सबसे ज़्यादा सस्ता मिलेगा, तो लोग वो सेव कर लेंगे कि इस तरीके से सस्ता मिलेगा और सितंबर में किस डेट पे सस्ता मिलेगा, राइट। तो जब तक लोगों के लिए वो चीज़ बेनिफिशियल नहीं होने वाली, वो चीज़ वो सेव नहीं करेंगे। अगर आप एंटरटेनमेंट या फनी में भी कोई चीज़ बना रहे हो, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि या तो इतना फनी हो कि लोग सेव कर ले ताकि बाकी लोगों को दिखाएं बाद में, लेटर ऑन यू गो टू योर डैड और यू गो टू योर मॉम कि ये देखो ये कितनी अच्छी वीडियो है, मैंने सेव की हुई है। या फिर आपको कोई भी फ्यूचर में आपको कोई चीज़ ऐसी करनी है, लेट्स से अगर मेरे को क्रिकेट खेलना है तो मैं किस तरीके से नेट प्रैक्टिस कर सकता हूँ, मैंने वो वीडियो सेव कर ली, राइट। सो आइदर यू हैव टू डू टू थिंग्स, या तो आपको वो फ्यूचर के लिए इतना अच्छा कंटेंट बनाना है कि लोग सेव कर लें, या फिर वो एंटरटेनमेंट वाइज अगर आप एंटरटेनमेंट में हो या कुछ ऐसा हो कि वो इतना फनी है कि लोग तब भी सेव कर ले। सो देर आर 2 एस्पेक्ट्स जिससे आप दोनों चीज़ों को क्रैक कर सकते हो। जैसे यूट्यूब का मैंने अगेन कंसिडर किया कि फर्स्ट 30 मिनट्स में
अब फर्स्ट 30 मिनट्स में क्लिक बिट मत करो कि ये चीज़ ऐसे हो गई वैसे हो गई, तो वो यूट्यूब को पता है कि वो आप क्लिक बिट करो, वो कभी भी नहीं करेगा आपको पुश, राइट। तो फर्स्ट 30 मिनट्स में आपको इंप्रूव करना है ताकि यूट्यूब पब्लिश करे। और सेम वे इंस्टाग्राम की अगर मैं बात करूँ तो आपको ज़्यादा सेव करवाने हैं लोगों से कि जितना सेव हो गए। तो ये 2-3 चीज़ें होती हैं, बट बेसिकली आपको यही है कि लोगों के पास जो फ्री टाइम है वो फ्री टाइम में आपको क्यों देखें, आपको वो मेक श्योर करना है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। I think like words ही नहीं है, like this was my next question कि what has changed after hustling in this content creation game, because obviously busy बहुत होते हो, obviously there are so many multiple verticals that you are working on, तो time तो वैसे होता ही नहीं है। तो like मेरा क्वेश्चन यही है इसी से कनेक्ट होके कि लाइक हाउ हैज़ ओपिनियंस ऑफ पेरेंट्स चेंज्ड अबाउट द करियर ट्रेजेक्ट्री दैट यू हैव चोजन, बिकॉज ऑब्वियसली पेरेंट्स के भी ड्रीम्स होते हैं अपने बच्चों को लेके कि यार मैं चाहता हूँ मेरा बेटा डॉक्टर बने, मैं चाहता हूँ मेरा बेटा IIT जाए। तो लाइक जो भी फंडामेंटल ड्रीम्स जो हमने सेट कर रखे हैं अपनी सोसाइटी में होते हैं सब पेरेंट्स के, तो लाइक व्हाट लाइक उनके ओपिनियंस पहले कैसे थे, हाउ दे हैव चेंज्ड। और जैसे कि हमने थोड़ी सी फ्रेंड्स की बात की, तो लाइक हाउ द कॉन्वर्जेशंस विद फ्रेंड्स हैव चेंज्ड, क्योंकि बीच में एकदम से गायब हो गए एंड अब एक इन्फ्लुएंसर बन गए हैं। तो लाइक फ्रेंड्स के साथ कॉन्वर्जेशन कैसे बदली, रिलेटिव्स के साथ कॉन्वर्जेशन कैसे बदली। तो थोड़ा सा बिकॉज लक्ष्य इज वेरी प्राइवेट, तो थोड़ा सा एक पर्सनल टच बस पॉडकास्ट को देना चाहता हूँ मैं। श्योर। तो सबसे पहले फैमिली के साथ स्टार्ट करते हैं, राइट। सो व्हेन इट कम्स टू माय मॉम, सो इट वाज मोर लाइक कि एक अच्छी जॉब ले लो एक बड़ी कंपनी में, राइट। कि इट वाज लाइक कि आप भी वो शर्ट और टाई पहन के जाओ, अच्छे से जॉब करो 9 to 5 और घर आ जाओ। बिकॉज इंडियन मेंटालिटी के हिसाब से क्या है कि जॉब इज़ लाइक कि आप सर्वाइव कर रहे हो, टू बी वेरी फ्रैंक, राइट। आप कंसिस्टेंट, आपके पास आप जॉब कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आपको आज ही किसी ने जॉब से निकाल दिया, राइट। बट आपका एक फिक्स अमाउंट मंथली आ रहा है। तो 99% पेरेंट्स का क्या होता है कि गवर्नमेंट जॉब ले लो या फिर आप प्राइवेट जॉब भी कर रहे हो तो जॉब कर लो भाई, आप सेफ साइड पे हो। बट बिजनेस से बहुत सारे लोग डरते हैं, बिकॉज आज बिजनेस है कल नीचे भी हो और आप फिर स्काई रॉकेट हो गया। तो वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं। बट मेरे साथ भी ये चीज़ थी कि मॉम वॉज मोर लाइक कि जॉब करो या ये सब करो। और मैंने 11th में, आपको आई डोंट नो पता या नहीं पता, बट मैंने स्टार्ट किया था नॉन मेड से, राइट। तो इट वाज लाइक कि मेरे को थोड़ा साइंस करना था, बिकॉज सबको पता था कि इट वाज लाइक मोर ऑफ कि भाई भेड़ चाल है, बीटेक करो, बीटेक में पैकेज अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है। बट मैं 10 दिन 15 दिन गया और मेरे को समझ आ गई कि ये मेरे बस का नहीं है, राइट। मैं वापस आया, कॉमर्स किया, राइट। नाउ आई एम इनटू बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और वो सारी चीज़ें। सो पॉइंट इज लाइक कि लाइफ जहाँ ले जाना चाहती है ना, वहीं पे आपको जाना चाहिए जहाँ पे आपका स्किल सेट है। मेरे को पता था कि मैं पढ़ाई में कुछ नहीं क्रैक करने वाला, वो मेरे को पता चल गया था कि मेरे से नहीं होने वाला। मैं 98 99 या फिर मेरे से इतनी पढ़ाई नहीं होगी कि मैं बीटेक में कुछ कर लूँगा और आगे एक अच्छी जॉब ले लूँगा। अगर कुछ होगा भी तो शायद बीटेक करने के बाद BBA या MBA ने करनी पड़ जाए कि आप उसी आप डाउनग्रेड कर रहे हो और आप फिर वो जॉब ले रहे हो। तो फैमिली का भी यही था। बट बहुत सारे लोग, अगर आप किसी अपने पेरेंट को बोलोगे ना कि आपको एक बिजनेस सेटअप करना है या फिर एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, तो बोलेंगे क्या बकवास कर रहा है यार, चुपचाप जॉब कर ले और कुछ भी कर ले, सेफ साइड पे रहो। और ये 99.99 पेरेंट्स का ये चीज़ है। बट फिर मेरे को लगता है कि आपको क्या करना चाहिए, फिर आप अपने और अंदर शेल में आ जाओ, अपने पेरेंट्स को भी मत बताओ। तो जैसे ये था कि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैंने यूट्यूब के बारे में ज़्यादा नहीं बोला था। इट वॉज लाइक ये पता था कि वीडियोज़ बना रहा है, बट किस चीज़ पे वीडियोज़ बना रहा है कुछ नहीं पता था, कैसे स्टार्ट किया कुछ नहीं पता था। बट फिर इट वॉज लाइक कि जब उनको पता चला कि पैसे आ रहे हैं यार, और अच्छे बहुत ही अच्छे पैसे आ रहे हैं, फिर उनको रियलाइज़ हुआ कि यार दिस इज़ वर्किंग, राइट। तो इट इज़ लाइक कि अब वो प्राउड वाली चीज़ है। अभी इट इज़ लाइक अभी एक रिसेंट हुआ कि ग्रॉसरी शॉप पे गए तो वहाँ पे किसी ने लव को बोला कि आप लक्ष्य चोपड़ा हो, मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ, और मम्मा वॉज स्टैंडिंग विद हिम। तो इट वॉज, उनको फिर वहाँ से रियलाइज़ हुआ कि यार कुछ तो किया है, कि ग्रॉसरी वाले को भी पता है और लोग आके भी बोल रहे हैं, एंड घर पे भी लोग आते हैं कि लक्ष्य से मिलना एंड ऑल दैट स्टफ। तो वहाँ से पेरेंट्स को पता चलता है कि हाँ भाई कुछ क्रैक किया है। देन कमिंग टू बिजनेस, फिर उनको ये पता था कि यूट्यूब से इनकम हो रही है, राइट। एंड माई डैड स्टार्टेड बिजनेस इन 2016, राइट। तो फिर वो थोड़ा सा रियलाइजेशन हो गया था कि बिजनेस में भी कुछ बात है, स्केल करना है लाइफ में। तो वहाँ से मेरे को कॉन्फिडेंस मिला था। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, पापा इज़ लाइक अगेन बैकबोन, मतलब मेरी और लव की भी जो बैकबोन है, ही इज़ लाइक कि जो करना है करो,
बी इट पैसा लगाना है पैसा लगाओ, लॉस होगा देखी जाएगी, कोई इशू नहीं है, कंपनी बंद होगी तब भी देख लेंगे, नई स्टार्ट कर लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे, बट ही इज़ वेरी चिल कि जो करना है मैं पीछे खड़ा हूँ, आप टेंशन मत लो। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट दोनों एस्पेक्ट्स हैं, राइट। बिजनेस में वो पीछे खड़े थे, यूट्यूब में वो पीछे नहीं खड़े थे। तो जब वो खड़े थे तो बहुत अच्छा ग्रो कर लिया, जब वो नहीं खड़े थे तो शायद थोड़ा टाइम लग जाएगा आपको ग्रो करने में। लेकिन जब मेरे 10K हुए तब उनको पता चला कि एक्चुअली में यूट्यूब क्या है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंडियन पेरेंट्स को नहीं पता कि यूट्यूब पे कंटेंट कैसे बन रहा है, यू नो कंटेंट मैं कैसे लिख रहा हूँ, कैमरा कैसे स्टार्ट हो रहा है, क्या हो रहा है। तो उनको वो अब पता चला। उसके बाद जब पापा को पता चला तो 10K पे स्टूडियो बना दिया, राइट, तब पैसा लगा दिया एंड ऑल दैट स्टफ। सो द बेसिक थिंग इज कि आपको कुछ ना कुछ तो करके दिखाना पड़ेगा, कि आप अपने पेरेंट्स को दिखाओ कि अगर आप मेरे को बोल रहे हो कि मेरे को जॉब करनी है, तो जॉब में अगर मेरे को 30,000 मिलते हैं तो शायद मैं 30,000 एक वीडियो एक ब्रांड से अर्न कर रहा हूँ, राइट। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। तो उनको जब वहाँ पे ये चीज़ समझ आती है कि यार 30,000 आप 9 to 5 जॉब कर रहे हो, आपको तब मिल रहा है, और आप एक ब्रांड से 30,000 रुपीज़ एक 2 मिनट की आई वुड से वो इंटीग्रेशन वीडियो होती है, आप उसमें अर्न कर रहे हो। तो वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको बैक ऑफ द माइंड सबको क्या चाहिए कि घर में पैसे आने चाहिए, राइट। आपको एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। तो आई वुड नॉट से यूट्यूब स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम है, बट येस कई कुछ हद तक आप मल्टीपल ऑप्शंस क्रिएट कर सकते हो। मल्टीपल ऑप्शंस एक बहुत बड़ा वर्ड है किसी की भी लाइफ में, स्पेशली इस फेस में, क्योंकि अब जिस हिसाब से इंडिया ग्रो कर रहा है और वो बाकी सारी चीज़ें, अगर आप मल्टीपल ऑप्शंस अपनी लाइफ में नहीं रखोगे तो आप एक टाइम पे तो नीचे गिर जाओगे और फिर उठना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज जॉब गई या फिर बिजनेस बंद हुआ तो फिर जो उठने का फिर वो आई वुड से 1000 में से कोई एक ही बंदा उठ पाएगा। दैट इज़ द थिंग। तो वो चीज़ है। कमिंग टू फ्रेंड्स और वो सब, तो ऐसा होता है जब आप स्कूल से निकलते हो ना, तो स्कूल से निकलने के बाद एक तो वैसे आपकी बात बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, और उसके बाद जब मैं 2 साल बिल्कुल ही शेल में चला गया, ज़्यादा किसी से बात नहीं कर रहा, स्टोरीज नहीं डाल रहा या पोस्ट नहीं कर रहा। अगर आप आज भी मेरा इंस्टाग्राम देखोगे तो शायद 6 से 7 फोटोज़ ही हैं, वो भी सिर्फ इसलिए लोगों को बताने के लिए कि सिल्वर प्ले बटन है एंड ऑल दैट स्टफ, वो सारी चीज़ें होती हैं फॉर्मेलिटी के लिए, राइट। तो द बेसिक थिंग इज़ कि मैं अभी भी उतना एक्टिव नहीं हूँ। मैंने इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशंस, व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन सब बंद कर रखे हैं। मैं फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट स्टिल मैं इन टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शन से किसी का मैसेज आ रहा है और वो सब मैं दूर रहता हूँ। तो फ्रेंड्स को भी जब पता चला तो इट वॉज लाइक स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली सब लोग एक वो आई वुड से नॉट यूज़ द वर्ड शॉक, बट थोड़ा सा डिफरेंट तो लगता है कि यार इसने क्या कर दिया, राइट। और फिर फ्रेंड्स का तो होता है कि आप कितना अर्न कर रहे हो भाई, कितने पैसे कमा रहे हैं एंड ऑल दैट स्टफ। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं, आई वुड नॉट नेम देम, मतलब आप तो स्कूल के सबको जानते ही हो, बट स्टिल ऐसे लोग होते हैं आई वुड से कि मिलने में भी प्रॉब्लम हो रही है, राइट, या मैसेज करने में भी कि लक्ष्य को मैसेज अप करें या ना करें। मतलब मैंने ये चीज़ नोटिस करी है। एक टाइम ऐसा आता है जब लोग सोचते हैं कि यार इसको अब कैसे मैसेज करें, अप्रोच कैसे करें, राइट। तो वो चीज़ मेरे साथ हुई, बट मैं बहुत ईजी गोइंग हूँ। मेरा ऐसा कोई वो सेलिब्रिटी वाला या वो आई वुड से सो कॉल्ड मैं भाई बड़ा आदमी बन गया हूँ, कुछ नहीं है। मैं उसी लेवल पे हूँ आज भी, वही अपना सेम है, उसी लेवल पे मैं चिल करता हूँ, उसी लेवल पे मैं एंजॉय करता हूँ। अगर मैं कॉलेज जा रहा हूँ तो वो कोई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर मैं बात करूँ तो वो मैंने अपने लिए चेंज किया है। जो मेरे आसपास के लोग हैं मैं उनके साथ वैसा का वैसा ही हूँ। मैं अपनी लाइफ में एक्सेल कर रहा हूँ, अपने लिए एक्सेल कर रहा हूँ। इट इज़ नॉट लाइक कि अच्छे कपड़े पहन के, अच्छे स्नीकर्स पहन के आप बड़े बन गए हो तो आपके आसपास वाले छोटे हो गए, नहीं। बिकॉज वो उस जर्नी में आपके साथ रहे हैं, राइट। मतलब इट वॉज लाइक खड़े तो है ना साथ में, आपको कुछ बोल तो नहीं रहे ना। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स का भी ऐसा ही है कि सब लोग अभी भी हैं, ऑब्वियसली उतना टच में नहीं है, बट व्हेन इट कम्स टू नाउ दिस हायर एजुकेशन, कॉलेज एंड ऑल दैट स्टफ, तो रेगुलर हूँ, रेगुलर हम लोग इन्जॉय भी करते हैं, बात भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। और वो कोई ऐसा वो गैप नहीं है कि मैं एक बहुत बड़ा बिजनेस बना रहा हूँ या कंटेंट क्रिएटर हूँ तो डरो, बट वो वाली चीज़ मेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं। और मैं फील भी नहीं करता, बिकॉज जितनी जल्दी आप ऊपर जाओगे ना उतनी जल्दी आप नीचे आओगे ही आओगे। आप कुछ भी कर लो तो बेटर है नीचे ही रहो, ऊपर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। और फिर नीचे आओगे तो फिर उठ नहीं पाओगे। सो दैट इज़ द थिंग। दिस वॉज अ फैंटेबुलस पॉइंट कि ऑब्वियसली दिस इज़ वन ऑफ माई बिगेस्ट टेक अवे आज की पॉडकास्ट से कि ऑब्वियसली अगर आप नीचे ही रहोगे तो कोई टेंशन ही नहीं है। एंड आई थिंक रितेश अग्रवाल ऑल्सो, आई वॉज लिसनिंग टू हिम, उसकी एक पॉडकास्ट, सो ही सेड कि हमेशा हम्बल ही रहना चाहिए, बिकॉज बिजनेस में ऑब्वियसली गुड डेज बैड डेज दोनों आते हैं। तो गुड डेज पे तो आप ऊपर रह के बहुत एंजॉय करोगे, लेकिन जब बैड डेज आएंगे तो आप गिर जाओगे, और फिर जब दोबारा जब आप गिर जाओगे तो कोई आपके आसपास नहीं होगा। ये फैक्ट है। आपके पेरेंट्स, फैमिली के अलावा कोई भी आपके आसपास नहीं होगा।
आई वुड से फ्रेंड्स भी नहीं होंगे, राइट? जब आप वापस से गिरोगे ना तो आपके पास कोई भी नहीं होगा, बिकॉज जब आप गिरोगे तो वो साथ में गिरेंगे, ये फैक्ट है। लेकिन आप योर फैमिली इज द वन जो आपके साथ गिरने के लिए रेडी है, राइट? बिल्कुल। तो जब आप गिरते हो तो उसके बाद सब स्कैटर हो जाता है। तो बेटर है कि इतना ऊपर मत उड़ो या उठो या फिर किसी को दिखाओ कि मैंने ये क्रैक कर लिया। सी कमिंग टू मी, मैं चाहूँ मैं बहुत सारी चीज़ें दिखा सकता हूँ सोशल मीडिया पे, राइट? या इतने आईफोन्स पड़े हैं या वट एवर द अदर स्टफ इज, मैं चाहूँ बहुत कुछ दिखा सकता हूँ, बट किसी को दिखा के आप क्या कर रहे हो, आप कंपैरिजन करके उसको पुल डाउन कर रहे हो। तो अगर आप पुल डाउन करोगे तो कोई कल को कोई और आएगा जो आपसे ऊपर होगा, वो आपको पुल डाउन कर लेगा, राइट? तो वो कर्मा वो चीज़ चलती रहेगी। तो इट्स बेटर है यार नीचे रहो, हम्बल रहो, सब कुछ सेटल रहेगा और आप आपकी जो ग्रोथ है वो कंसिस्टेंट रहेगी। सो दिस इज द बेस्ट थिंग व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस in this last 2 to 3 years. This conversation has been so great. My last question before we move on to a fun small rapid fire, ki like how you invest your money? Is it stocks, mutual funds, FD, crypto? Yeah, currently it is like most of it is being just reinvested into the different business verticals that you're working on. See, investment is very important. ठीक है, मैं हमेशा मतलब एक चीज़ बोलता हूँ जितने भी लोग मेरे आसपास होते हैं कि जो आपके बैंक में या जो आपके लॉकर में जो पैसा पड़ा हुआ है ना, वो दैट इज़ इवेंचुअली पेपर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट? अगर आपके बैंक में 50 लाख भी पड़े होंगे लेकिन आप उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो वो आपके लिए पेपर बन जाएगा आने वाले टाइम में। बिकॉज अगेन वही चीज़ कि इंडिया ग्रो कर रहा है, इन्फ्लेशन एंड ऑल दैट स्टफ, तो क्या होगा, वो 50,000 की वैल्यू आने वाले 10 साल में 50,000 नहीं रहेगी, राइट? वो शायद 5,000 भी नहीं रहेगी। सो दैट इज द थिंग कि आपके पास अगर कुछ पैसा है, कितना भी अमाउंट हो, राइट, चाहे 10,000 हो, चाहे 10 लाख हो, चाहे 10 करोड़ हो, आपको उसमें से 70-80% अमाउंट इस टाइम पे इन्वेस्ट करना चाहिए। ये मेरी एक सजेशन है। और इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ स्टॉक्स या फिर क्रिप्टो नहीं होता, इन्वेस्टमेंट बहुत टाइप की होती है, राइट? अभी आई एम इनटू म्यूचुअल फंड्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को थोड़ा सेफ साइड लगता है। मेरे को क्रिप्टो का मेरे को सी भी नहीं पता, स्टॉक्स का भी मेरे को कोई एस नहीं पता, मतलब मैं इतना ज़्यादा नहीं हूँ। आई नो एवरीथिंग, जो साथ में हो रहा है, एवरीवन इज इनटू स्टॉक्स और वो सब चीज़ें मेरे को भी पता है स्टॉक्स में क्या होता है, बट मैं उतना, मेरे में पोटेंशियल नहीं है कि मैं स्टॉक्स में बैठा रहूँ पूरा दिन। बिकॉज स्टॉक्स या फिर क्रिप्टो इज द थिंग कि आपको उसमें भी अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। मनी तो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, साथ साथ टाइम भी इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो बेसिक थिंग इज, अगर मैं अपनी इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो जो मेरे बिजनेस वर्टिकल्स हैं मैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, राइट? व्हाट आई फील इज, इन्वेस्टमेंट करनी है तो डेप्रीशिएटिंग एसेट पे मत करो, बेटर है बी इट सी गाड़ी लेने के लिए तो मैं आज कोई भी गाड़ी ले लूँ, राइट? बट वही पॉइंट है कि वो कहीं ना कहीं डेप्रीशिएट होगी, 2 साल इंजॉय कर लूंगा, शायद 2 मिनट का शो ऑफ भी होगा, लेकिन उसमें मज़ा नहीं आएगा। लेकिन शायद मेरे को ऐसा लगता है खरीदने के बाद ही डिप्रीशिएट हो जाती है उसकी वैल्यू इतना। ऑब्वियसली आप कोई भी गाड़ी लोगे वो खरीदने के बाद डिप्रीशिएट हो जाएगी। और मैं वही बोल रहा हूँ, वो सिर्फ 2 मिनट का शो ऑफ होगा, सिर्फ 10 लोगों के लिए जिनको आप दिखाना चाहते हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो या आपके आसपास कोई भी लोग हो फैमिली में, वो 10 मिनट का शो ऑफ होगा, उसका कोई फायदा नहीं है, राइट? तो मैं भी अगर इस टाइम पे कोई भी चीज़ परचेज कर रहा हूँ, राइट, बी इट आईफोन, तो मेरे को पता है कि मेरे चैनल पे काम आ रहा है, मेरे लिए वो इन्वेस्टमेंट है। अगर मैं एक आईफोन ले रहा हूँ तो शायद मैं 10 आईफोन का पैसा कमा रहा हूँ उस चीज़ से, तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि इन्वेस्टमेंट वहीं करो जहाँ पे आपका पैसा ग्रो करे, राइट? स्टॉक्स में क्यों नहीं, मेरे को पता है कि स्टॉक में आप नीचे भी जा सकते हो, ऊपर भी जा सकते हो, राइट? सो प्रॉपर्टी इज़ वन थिंग जहाँ पे आप इन्वेस्ट करो, आप ग्रो ही करोगे, मतलब हुक और बाय क्रुक आप ग्रो करने ही वाले हो, क्योंकि उस तरीके से प्रॉपर्टीज ग्रो करती हैं। तो वो एक चीज़ है। म्यूचुअल फंड इज लाइक आपको थोड़ा इंटरेस्ट देंगे, लेकिन इंटरेस्ट उतने लेवल का दे देंगे कि आप अच्छे लेवल पे हो। SIP एक बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है जो मैक्सिमम फैमिलीज करती हैं, तो वो चीज़ है, मैं वहाँ ज़्यादा इन्वेस्ट करता हूँ। और मेरा बेसिक वही है कि जहाँ पे रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो मैं वहाँ पे नहीं जाता, बिकॉज मेरे को पता है मेरे पास टाइम भी नहीं है वो रिस्क को आई वुड से बैलेंस करने में कि मैं वापस से ग्रो कर जाऊँगा। तो बेटर है कि हमेशा इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से सोचो, तो जहाँ पे चीज़ें स्टेबल हो, जहाँ पे आप टाइम दे सकते हो, वो आपके लिए हमेशा बेटर होना चाहिए। बट माई 90% ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज इन माई बिजनेस वर्टिकल्स, बिकॉज मेरे को पता है हम लोग बूट स्ट्रैप्ड हैं अभी कंप्लीटली। मेरे दोनों वेंचर्स अभी बूट स्ट्रैप्ड हैं, हम लोग कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे। अब सैलरीज हैं, मार्केटिंग स्पेंड है, सब कुछ कहाँ से आ रहा है, वो यहीं से जहाँ से हम लोग अर्न कर रहे हैं, राइट? मी एंड लव, राइट? सो वो चीज़ें हैं, तो वहाँ पे उसको ग्रो करने में मैं सारा कुछ अभी इन्वेस्ट कर रहा हूँ। बट अगेन वही चीज़, आपके पास थोड़ा सा पैसा आता है तो ऐसे मत करो कि
गाड़ी ले ली या महंगे से महंगा आईफोन ले लिया, अगर आईफोन आपके काम आ रहा है आपको ग्रो करने में, आपका पैसा डबल ट्रिपल करने में, या फिर अगर आप कोई गाड़ी लेना चाहते हो तो मैं बोलूँगा कि आपके पास उतना पोटेंशियल होना चाहिए कि आप ऐसी 5 गाड़ियाँ खरीद पाओ तब वो एक गाड़ी लो. दिस इज व्हाट आई बिलीव, राइट. अगर आपको 1 करोड़ की गाड़ी खरीदनी तो आपके पास 5 करोड़ बैंक में होने चाहिए कि आप वो 1 करोड़ की गाड़ी खरीद लो, राइट. उसके बाद भी एक्स्ट्रा अमाउंट होना चाहिए कि आप अपनी फ्यूचर को आप देख लो, प्रेजेंट आप लिव करो, वो सारी चीज़ें. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए. जब आप अर्न कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ साथ अपनी लाइफ को भी इंजॉय करना है. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट हो जाओ कि फ़ोन नहीं खरीदना या ये नहीं करना, वो नहीं करना. तो फ्यूचर को देखते हुए प्रेजेंट भी लिव करना है, बट इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली इस टाइम पे. What an amazing conversation this has been. We have accumulated a lot of knowledgeable content और मतलब मेरे को बहुत मज़ा आया है ना. आई होप हमारी ऑडियंस को बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को डेफिनेटली मिला है. बहुत सारे डीप चीज़ों पे हमने पॉइंट्स मतलब डिस्कस किए हैं. तो नाउ थोड़ा सा आप बहुत ज़्यादा डीप में जा चुके हैं, अब थोड़ा सा फन साइड की तरफ चलते हैं. तो आई हैव 3-4 क्वेश्चंस, फन रैपिड फायर फॉर यू लक्ष्य. तो लाइक 3 फेवरेट फूड यू कैन ईट फॉर एवर. 3 फेवरेट फूड या आई कैन ईट फॉर एवर. सी वन इज तो डेफिनेटली जंक. मतलब मैं जंक में अगर डिटेल में जाऊँगा तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, बट राइट नाउ आई हैव रिस्ट्रिक्टेड माई सेल्फ टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज मेरे को अगेन टाइम के साथ ये चीज़ समझ आ रही है कि हेल्थ और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हेल्थ है तो फिर वेल्थ है, राइट. दिस इज़ वेरी कॉमन. तो जंक तो सबकी फर्स्ट प्रेफरेंस होती है, बट नाउ आई हैव रिस्ट्रिक्टेड ऑल दीज थिंग्स. तो मैं थोड़ा जंक से बाहर आ गया हूँ. तो मेरे को अभी मैं घर का ही खाना खाता हूँ एंड ऑल दैट स्टफ. सो बीट राजमा राइस एंड ऑल दैट स्टफ. तो मैं बहुत सिंपल रखता हूँ चीज़ों को. जंक खाओ या ना खाओ दैट इज़ अ सेपरेट केस. मतलब आपने 2 months या 3 months में एक बार खा लिया, दैट इज़ वन थिंग. बट अभी मेरा ऐसा कुछ प्रेफरेंस नहीं है कि मेरे को यही खाना है या वो खाना है. बट येस, अगर मैं बात करूँ तो मेरे डेली लाइफ स्टाइल में इट इज़ लाइक आई एम ईटिंग एग्स, राइट, टू कीप दैट वो स्ट्रेंथ आनी चाहिए एंड ऑल दैट स्टफ. वो प्रोटीन इनटेक करना. तो अभी मैं जिमिंग भी स्टार्ट कर चुका हूँ, वो सारी चीज़ें. तो ये इसलिए बिकॉज वो लाइफस्टाइल में भी चेंज आना, वो हेल्थ में इम्प्रूवमेंट. बिकॉज इट वाज लाइक कि मैं 1 साल 2 साल पहले मैं इतना पागल हो गया था कि मेरे को खाना खिलाने के लिए भी इट वाज मॉम विद मी, कि वो मेरे होता है ना स्पून फीडिंग कर रहे हैं. मैं इतना बिजी था, आई एम टेकिंग लेक्चर्स एंड ऑल दैट स्टफ. बट अब मेरे को समझ आया, बट बीच में मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, राइट. नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ फैट, बट और भी ज़्यादा चीज़ें जो है डिफिकल्ट हो गई थी मेरे लिए. फिर मेरे को समझ आया कि थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं एंड ऑल दैट स्टफ. तो इट इज़ लाइक थोड़ा सा ये रैपिड फायर डिफरेंट हो गया, बट आई एम सॉरी. थोड़ा सा एक्सप्लेन यही कर रहा हूँ कि थोड़ा जंक मैंने रिस्ट्रिक्ट किया, क्योंकि अगर आप ग्रो कर रहे हो ना तो लाइफस्टाइल में और हेल्थ 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है जो आपको ध्यान रखने चाहिए. जंक से ना आपकी बॉडी भी लेजी हो रही थी एंड एनर्जी आप फील नहीं कर पा रहे थे. तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है. बट मेरे भी मेन प्रेफरेंस इज़ लाइक कि मैं घर का खाना खाता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ एंड वाटर इनटेक ज़्यादा कर रहा हूँ, हाइड्रेट ज़्यादा रह रहा हूँ. ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हूँ. No, I think I'll totally agree on this कि maybe like in the last 2 months I have also started to take care of my physical health, क्योंकि as my parents say कि चाहे आपको business बनाना है, चाहे physical health अच्छी करनी है, physique अच्छा रखना है, कुछ सीखना है, कोई नई skill सीखना है, I think 18 to 23 इन सब चीज़ों के लिए psychologically, mentally, physically एक बंदे के लिए आई थिंक ये बेस्ट एज होती है. तो आई डेफिनेटली ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स आर सो ट्रू. एंड अब ठीक है, हमने दोबारा इसको थोड़ा ज्ञान की साइड ले गए, दोबारा फन की तरफ आते हैं. तो 3 फेवरेट मूवीज या बुक्स दैट यू लव. एक तो मेरे को ये जवानी है दीवानी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है. मतलब इट इज़ लाइक फिर आपको थोड़ा सा, क्योंकि मूवीज इज़ लाइक आप जब थोड़ा बिजी हो जाते हो और वो सारी चीज़ें, तो एक YJSD थोड़ा आपको लाइफस्टाइल के बारे में, लाइफ एंजॉय कैसे करनी है उसके बारे में, राइट. एक मेरे को MS धोनी, अब ये थोड़ा सा अगेन ज्ञान में चली जाएगी, बट वो स्ट्रगल और वो हार्ड वर्क वो जो है वो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. एंड थर्ड वुड बी अगर मैं बुक की बात करूँ तो मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं अभी रिसेंट टाइम में. बट बहुत सारे लोग अभी इससे वो करेंगे, बहुत सारे लोगों ने पढ़ी भी होगी. तो दोगलापन सब लोगों ने आई गेस पढ़ी होगी. मतलब इन टर्म्स ऑफ जो लोग बहुत ज्यादा हैबिट में है दोगलापन पढ़ने की, तो आई वुड रिकमेंड. यस. मैं भी यही, ये मेरे करंट रीड चल रही है.
हाँ, तो अभी इसका एक पेज नंबर मेरे को याद नहीं आएगा, 46 है या फिर 48 है, एक पेज नंबर है। मैं तो टेक्स्ट कर दूंगा सौरांश आपको, बट उसमें इट इज मोर लाइक कि लाइफ को कैसे क्या करना है। और वो अगेन चीज जो मैंने पॉडकास्ट में पहले बोली थी कि आपको ना शेल में जाना पड़ेगा, कुछ फोड़ने के लिए ना आपको प्राइवेट होना पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर सबको बता दोगे ना तो सब वो कैरी ऑन हो जाएंगी चीजें, और आप फिर शायद उस लेवल पे ग्रो नहीं कर पाओगे। तो ये 3 चीजें मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रही है। मतलब अगर आप शेल में हो तो शेल भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जैसे YGSG, ये जवानी है दीवानी है, तो फिर आगे लाइफ को कैसे एंजॉय करना है, क्योंकि सी इट इज लाइक उसमें क्या है कि इतना पैसा है कि आप हर जगह घूम रहे हो, राइट, लाइफ बिल्कुल को एंजॉय कर रहे हो। बट बेसिक चीज क्या है कि पहले उतना पैसा बना तो लो, उसके बाद वो लाइफ को एंजॉय करना। एग्जैक्टली तो दिस इज ओके सो दिस इज अ क्वेश्चन जो आई थिंक लक्ष्य से तो स्पेशली सब पूछना और पूछते भी होंगे, लाइक द मोस्ट एक्सपेंसिव परचेज टिल नाउ। मोस्ट एक्सपेंसिव परचेज टिल नाउ, मतलब इन टर्म्स ऑफ गैजेट्स या कुछ भी? कुछ भी, लाइक जो खुद के पैसों से खरीदा, नॉट विद पेरेंट्स या किसी के सपोर्ट से। तो खुद के पैसों से मैंने जो चीज परचेज करी है सबसे ज्यादा महंगी आई गेस, तो मैं ऑनेस्टली सबसे ज्यादा गैजेट्स में इन्वेस्ट करता हूँ। बट मैंने अराउंड अगर सबसे ज्यादा स्पेंड वन टाइम में किया है तो अराउंड मैंने 4-5 लाख रुपीज अपने मैकबुक पे लगा दिए, बिकॉज मुझे लगता है मेरा वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मेरी डेली नीड है। बिजनेस भी यहीं से हैंडल होता है, सब कुछ यहीं से मैं हैंडल करता हूँ, 90% ऑफ द थिंग्स, मीटिंग्स भी मैं यहीं पे कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। तो ये मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग है जो मैंने अभी तक परचेज करी है। मतलब मैंने इसके साथ और भी चीजें होती हैं, तो मैंने एक साथ 4-5 लाख रुपए लगा दिए, और दिस इज माई मोस्ट एक्सपेंसिव परचेज। अभी और भी चीजें होंगी, बट वो थोड़ा कंट्रीब्यूशन है, थोड़ा लफ का कंट्रीब्यूशन है, थोड़ा डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है, बी इट हैविंग अ हाउस और बी इट हैविंग बहुत सारी चीजें होती हैं जो मैं अभी नहीं बता बिल्कुल। सकता इन ऑल टुगेदर। बट वो ये कि जो खुद के पैसों से बिल्कुल अलग से परचेज किया, तो वो यही है। ओके सो दिस इज अ क्वेश्चन जो मैं हर किसी से पूछता हूँ, मुझे खुद बहुत पसंद है। इज इट मनी फर्स्ट और फेम फर्स्ट? इट इज मनी फर्स्ट और सॉरी और फेम फर्स्ट? मनी फर्स्ट और फेम फर्स्ट, तो मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे आंसर होना चाहिए मनी फर्स्ट, ठीक है, बिकॉज फेम भी ना अगेन टेम्परेरी है यार। मतलब मनी भी कभी कभी टेम्परेरी हो सकती है, बट फेम तो डेफिनेटली, राइट। अगर मैं आज बात करूं, अगर बॉलीवुड में चला जाए तो गोविंदा एक टाइम पे बहुत ज्यादा फेमस थे, राइट। आज उनको कोई देखना ही नहीं चाहता, मतलब कोई मूवी आ जाएगी तो शायद उतनी नहीं चलेगी। सेम विद अक्षय कुमार, मूवीज फ्लॉप पे फ्लॉप चल रही है। तो आप फेम लेके भी कभी कभी उतना पैसा नहीं कमा पाओगे, बट ऐसा होता है जब आपने कुछ एक लेवल पे पैसा कमा लिया। अब सी मुकेश अंबानी को ना डांस करना आता है ना तो एक्टिंग करनी आती है, लेकिन पूरा इंडिया उसको जानता है। सेम विद अडानी बिल्कुल। ग्रुप, राइट। अब अडानी में भी क्या है कि ना तो एक्टिंग आती है, ना वो शायद उतनी अच्छी स्पीकिंग स्किल्स होंगी, बट उनको पूरा इंडिया जानता है। अगर आज आप बच्चे बच्चे से ही पूछोगे कि हु इज रिचेस्ट, तो शायद वो मुकेश अंबानी बोल देंगे इंडिया में, राइट। बट सेम वे तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं एक रिसेंट बात करूं अभी शार्क टैंक, तो अमन गुप्ता एंड अश्नीर ग्रोवर, पीयूष बंसल एंड अनुपम मित्तल एंड ऑल दैट, तो क्या है कि उन्होंने इतना पैसा बना लिया कि अब फेमस हो गए। अब उनको वो सेलिब्रिटी वाली वाइब भी आ रही है, वो फीलिंग्स भी आ रही है, लोग आप पॉपुलर हो गए। तो ऐसा लगता है कि आप मनी मनी तभी आ जाए जब आप कुछ क्रैक करते हो, बिजनेस में कुछ क्रैक कर लोगे या पढ़ाई में कुछ क्रैक कर लोगे। तो क्रैक करना पहले जरूरी है। क्रैक इज अ थिंग कि आपको कुछ ना कुछ तो भाई फोड़ना है। एक बार आपने कुछ बिल्कुल। फोड़ दिया, उसके बाद आप अपने आप फेमस हो जाओगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप अगर फेमस होगे और फिर पैसा बनाओगे तो वो टेम्परेरी है। अब मैंने लेट्स से अगर मैं यूट्यूब की भी बात करूं, तो यूट्यूब से उतनी इनकम मतलब फेमस होने के बाद आती है। आई एम नॉट सेइंग, आई वुड नॉट डिनाई कि नहीं आती, बट इट इज नॉट लाइक कि आपके पास पैसे आ रहे हैं तो आप वो चीज हो रही है कि आप फेमस हो तो आपके पास पैसे आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। आप जो डिलीवर कर रहे हो आपके पास इसलिए पैसे आ रहे हैं, तो आपने कुछ फोड़ा है, राइट। वो क्रैक करना जरूरी है। तो इट इज ऑलवेज मनी फर्स्ट। अगर आपके पास पहले पैसे आ जाएंगे तो आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, मल्टीपल थिंग्स। आप बिजनेस बना लोगे, उसमें आप अपना नाम बना लोगे, राइट। या फिर अगेन वही चीज, पैसे आगे तो लोग आपको जानना शुरू कर देते हैं। जिसके पास पैसे नहीं होते उसको कोई नहीं पूछता, ये फैक्ट है। बिल्कुल सही कह रहे हो। एंड आई थिंक ऑन दिस ओनली शाहरुख खान का एक बहुत फेमस इंटरव्यू है जिसमें वो बोलते हैं कि बिकम रिच फर्स्ट एंड देन बिकम अ फिलोसफर, कि पहले अपनी जेब में पैसे होने चाहिए जब लोग आपका ज्ञान सुनने को तैयार होंगे। एंड आई थिंक दैट इज रियली रियली ट्रू। और बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं
राइट? बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, आई वुड नॉट नेम देम, बट आप जितना मर्जी अच्छा बोल लो, लेकिन एंड ऑफ द डे बहुत लोगों को ये पता है कि आप सिर्फ हमको मोटिवेट करने के लिए बता रहे हो कि यार ये लाइफ में ऐसे करो। आप बैक ऑफ द डे कितना अर्न कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है, वो मैटर करता है। तो मोटिवेशन इज वन Obviously. थिंग, बट ऑल टुगेदर वो ये है कि आप पहले कुछ फोड़ो, उसके बाद आप ज्ञान दो। दैट इज द थिंग। बिल्कुल नहीं, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। ओके, सो लास्ट फन रैपिड फायर क्वेश्चन जिसको हमने मस्त ज्ञान बना दिया, मेरे को बहुत मजा आया इसमें। तो 3 हॉबीज या लेजर एक्टिविटीज दैट यू नो, वही हेक्टिक डे है पूरा तो थोड़ा सा टाइम निकाल के वो कभी कभार कर ले, तो 3 हॉबीज जो कभी कभार, क्योंकि हेक्टिक डे रहता है पूरा। फर्स्ट इज ऑब्वियसली, मतलब इट इज लाइक आप जब भी मेरे हाथ में बैट पकड़ा दो, आई विल स्विंग द बैट, एंड मेरे को आप एक रूम भी दे दोगे छोटा सा, तभी मैं क्रिकेट खेलना शुरू कर दूंगा। सो क्रिकेट इज वन थिंग। सेकेंड, जो मैंने अब थोड़ा सा रियलाइज किया है कि अगर मेरे को अब टाइम मिलेगा तो डेफिनेटली इट इज लाइक कि थोड़ा सा फोन साइड रखो, राइट? जिमिंग कर रहे हो या फिर आप थोड़ा सा बाहर जा रहे हो, थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हो, बिकॉज लर्निंग फ्रॉम योर सराउंडिंग्स इज इम्पोर्टेंट। अगर आप मतलब मेरे को ये भी रियलाइज हो आप घर में हो तो कुछ नहीं होगा, बाहर निकल के दुनिया से सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं वो भी कोशिश करता हूँ। एंड थर्ड इज लाइक कि अगर मेरे पास फ्री टाइम है तो मैं अभी मैं शार्क टैंक देख लेता हूँ, राइट? मतलब मेरे लिए वो होता है कि फ्री टाइम में भी फन वे भी मैं कुछ सीख रहा हूँ। शार्क टैंक में भी इट इज नॉट लाइक कि सिर्फ बिजनेस बिजनेस हो रहा है, बट देयर इज सो मच फन। या फिर मैं अभी रणवीर अलाहाबादिया के मैं पॉडकास्ट बहुत ज्यादा, आई वुड से कि मैं अगर मेरे पास टाइम है तो मैं दो दो तीन तीन एक साथ देख रहा हूँ, बिकॉज वहां से भी ना फन वे में मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। तो इट इज लाइक कि मैं एग्जैक्टली। कोशिश करता हूँ कि सीख लूँ बेटर है। अगर आप फन वे में कुछ सीख रहे हो ना तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट वो ये कि क्रिकेट से स्टार्ट होते होते फिटनेस पे आता है, एंड देन इट इज अगेन बैक टू बेसिक्स की भाई कुछ लर्न करो। तो दिस हैज़ बीन अ ग्रेट कॉन्वर्जेशन, आई रियली लव्ड। पता नहीं मेरे को तो आई रियली लव दोज कॉन्वर्जेशन जहाँ पे जो गेस्ट आ रहा है वो बंदा एंटरप्रेन्योर और कंटेंट क्रिएटर दोनों है, बिकॉज दैट इज समथिंग आई एम ट्राइंग टू डू, एंड आई रियली एन्जॉय कॉन्वर्जेशन विद पीपल whom I am inspired by कि वो उन दोनों डोमेन में कुछ कर रहे हैं। एंड आई थिंक मेरे को पर्सनली, ऑडियंस का तो नहीं पता, मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है ऐसी कॉन्वर्जेशन से। मेरे काफ़ी सारे टेक अवेज रहे हैं आज। तो एक लास्ट क्वेश्चन, एक लाइक वन बिग अनफिल्टर्ड एडवाइस फॉर ऑल द 16 17 18 ईयर ओल्ड्स ट्राइंग टू बिल्ड बिजनेसेस या फिर ट्राइंग टू start their content creation journey at this very moment, because at Shut Up Saransh what we believe is कि मतलब हमारा फंडा ये है कि अनफिल्टर्ड बोलो। वो हम PR ट्रेंड होके नहीं बैठे हैं यहाँ पे, हम नॉर्मल दोस्त की तरह बात कर रहे हैं आपस में। तो लाइक एक बिग अनफिल्टर्ड एडवाइस, जो हमारी ऑडियंस है वो हमारी एज की, हमसे 2-4 साल बड़ी होगी, 2-4 साल छोटी होगी, तो एज यू बीइंग अ ब्रदर टू देम, एक बिग अनफिल्टर्ड एडवाइस उनको जो आप देना चाहते हो। सी सबसे पहले तो व्हेन इट कम्स टू 16 17 18, नॉट 18 बट 16 17, आई वुड से कि बहुत ज्यादा अर्ली हो जाएगा एक बिजनेस बिल्ड करने के लिए, बिकॉज उस एज में आपके पास शायद आपकी 10th 11th 12th है, राइट? तो आप, मेरे को लगता है कि आपको सबसे पहले तो वहां पे कोशिश करो, इफ यू हैव दैट इन यू, अगर आप मैक्सिमम जितना अच्छा कर सकते हो तो पहले तो 11th 12th में आप वो खत्म करो, बिकॉज व्हाट आई बिलीव इन इज कि वो भी कहीं ना कहीं आगे चल के पार्ट ऑफ बिजनेस, पार्ट ऑफ योर जॉब या फिर पार्ट ऑफ योर कंटेंट क्रिएशन बनेगा, राइट? अगर मैं शायद बिल्कुल। उतना अच्छा इंग्लिश बोलने में नहीं होऊंगा तो राइट शायद मैं उतना अच्छा वो नहीं करूंगा, बट एक एडवाइस अनफिल्टर्ड सब कुछ एंड ऑल दैट, मतलब अगर मैं किसी को ऑन फेस टू फेस बोलूं कि भाई आपको क्या करना चाहिए या वो सब, तो इट वुड बी नॉट लाइक कि यार आप आज ही बिजनेस स्टार्ट कर दो या फिर आप आज ही कंटेंट बनाना शुरू कर दो। बट मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा कि जब आप अपने 18 में पहुंच जाओ तो आपको एक चीज समझनी है कि आपको कॉलेज जाने के लिए या फिर कुछ स्पेंड करने के लिए, अगर बिल्कुल आपके वर्जन में बोलूं, अगर गर्लफ्रेंड को घुमाना है या कुछ भी XYZ करना है, तो ऐसा ना करना पड़े कि पापा पैसे दे दो या कॉलेज के महीने के मेरे को इतने पैसे मिलते हैं तो मैं उसमें से इतना खर्च देता हूँ, इसमें से इतनी टी शर्ट ले लेता हूँ या स्निकर्स ले लेता हूँ। सो माई पॉइंट इज कि 18-19 तक इंडिया में ये चीज होनी चाहिए कि आपके पास फाइनेंशियली आप फ्री हो जाओ, नॉट इन दैट कॉन्टेक्स्ट कि भाई गाड़ी भी ले लो और सब कुछ ले लो, लेकिन एटलीस्ट आपको अपने पेरेंट्स से ना मांगना पड़े। अगर मैं एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दूं तो अभी यूएस क्यों ग्रो करता है इतना अच्छे से, यूएस सबसे ऊपर क्यों है? बिकॉज वहां पे 14-15 के बाद ही फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं
वहां पे आजकल अगर मैं बात करूँ यूएस में सबको वेबसाइट पे कोडिंग करनी आती है, वेबसाइट बनानी आती है, ऐप बनाना आता है, राइट? इंडिया में देयर आर बंच, आई वुड से स्मॉल बंच ऑफ पीपल डूइंग दिस। अभी ये फील्ड ग्रो कर रही है, बट वहां पे लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो 14-15 से वो चीजें स्टार्ट कर रहे हैं, राइट? हम लोग यहाँ पे 18-19 तो समझते हैं कि यार 12th के बाद हम लोग फ्री हो गए, अब बारी है एंजॉय करने की। लेकिन यहाँ पे हम लोग गलत है। 18 के बाद तो आपका 5 साल का रियल स्ट्रगल है। अगर 18 to 23 में आपने कुछ कर लिया तो यू आर गुड टू गो। वरना मैं अभी बोल देता हूँ, मतलब जिस हिसाब से अभी इंडिया ग्रो कर रहा है और कंपनीज ले ऑफ कर रही है और जिस हिसाब से ये पूरा मार्केट वर्क कर रहा है, तो 23 के बाद अगर आप कुछ, आई एम नॉट सेइंग 23 के बाद आप बिजनेस नहीं बना पाओगे, लेकिन अगर आपका पर्सपेक्टिव वही जॉब वाला है कि आप सिर्फ जॉब में ही ग्रो करोगे, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। फिर आप बहुत सिंपल रहोगे कि एक छोटी गाड़ी होनी चाहिए, एक घर हो जाए या रेंट पे ले लेंगे, ऑल दैट सब। तो यार विजन बड़ा होना चाहिए, बड़ा सोचो। आप बड़ा डेफिनेटली शायद उतना बड़ा ना कर पाओ, लेकिन अगर आप 100% सोचोगे तो आप 70% पक्का अचीव कर लोगे, मैं गारंटी कर रहा हूँ आज। क्योंकि रीजन यही है, बड़े सपने देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सपने बाकियों को मत दिखाओ कि भाई मैं ये बन के दिखाऊंगा, सपने खुद को दिखाओ, अपनी सोल को दिखाओ कि अब कुछ ना कुछ क्रैक करना है, राइट? और अगेन वही बिजनेस या फिर कंटेंट में करने की जरूरत नहीं है कि यार आप ये पॉडकास्ट आज सुन रहे हो तो सिर्फ इसी चीज में करो। कुछ भी करो लाइफ में, लेकिन 18-19 तक इतना तो कमा लो। आजकल इंडिया में सर्विस बिजनेस में अगर बात करूं तो वो इतना ज्यादा पॉपुलर और इतना ज्यादा इजी गोइंग है कि आपके पास कोई स्किल हो, आपको अगर इंग्लिश में आप अच्छे हो, आप इंग्लिश के कोर्सेज और लेसन दे दो, तो आप इजिली 30-40,000 रुपीज पर मंथ अर्न कर लोगे। इतने सारे प्लेटफॉर्म्स है, आई वुड से अपवर्क है, सॉरी ये है यूडमी है, और ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप इजिली अर्न कर लोगे। तो मतलब पॉइंट ये है कि आपके पास एक स्किल सेट है, आप उसमें डिलीवर करना शुरू करो। और 18-19 तक मम्मी पापा पे डिपेंडेंट बिल्कुल भी मत रहो। मैं तो मतलब 18 से ही आई वाज लाइक कि मेरे को कुछ ना कुछ करना, और मैंने 18 में ही कर लिया था। मतलब बिफोर टर्निंग 18 आई वाज 17 and 9, तो मतलब 18 से पहले ही मैंने कर लिया था। और मेरे को फिर वहां से ये चीज रियलाइज हुई कि आपके पेरेंट्स जितने मर्जी स्ट्रिक्ट क्यों ना हो, एक तो वो भी इजी गोइंग हो जाएंगे। वो बिल्कुल वो जो स्ट्रिक्टनेस है ना, ये कर लाइफ में, अब ये कर, हाथ पकड़ के चलो, वो सारा कुछ आपके लिए इजी हो जाएगा। क्या वो कभी मना भी नहीं करेंगे, तू फोन ले, 15,000 के स्निकर्स ले या 15 लाख के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप फिर क्या होता है, जब आपके पास पैसा आता है ना, तो आपका दिमाग खुलना शुरू हो जाता है। वरना आप रिस्ट्रिक्टेड होते हो। आपके पास जब पैसा आ जाएगा, फिर आप 100 चीजें और सोचते हो कि आज यहाँ पे भी इन्वेस्ट कर लूँ, वहां पे भी कर लूँ, लाइफ में ये भी कर लूँ। तो अगेन मेरा 2 बेसिक पॉइंट वही रहते हैं कि मल्टीपल ऑप्शंस होने चाहिए हमेशा लाइफ में, राइट? अगर एक बहुत अच्छा चीज बोलूं तो मुकेश अंबानी चाहे तो आज रिलायंस पर्टिकुलरली, उनका ऑयल का ही बिजनेस इतना बड़ा है कि वो ऑयल में ही आराम से सेटअप करके अपनी पूरी लाइफ एंड 10 आई वुड से 10th कमिंग जो फ्यूचर जनरेशन है उनको भी आराम से खिला के बैठ सकते हैं, राइट? लेकिन वो हर सेक्टर में क्यों घुस रहे हैं? फिर टाटा हर सेक्टर में क्यों घुस रहे हैं? बिकॉज ये नहीं है कि पैसा कमाना है, बट इट इज लाइक कि जितने मल्टीपल ऑप्शंस हो, आप कंट्री की भी हेल्प कर रहे हो, खुद की भी हेल्प कर रहे हो, जो आपके आसपास लोग हैं, आप जॉब क्रिएट कर रहे हो, तो एक बड़ा इम्पैक्ट डालना बहुत ज्यादा इजी है। और इंडिया ग्रो इसलिए कर रहा है बिकॉज अब जितने भी स्टार्टअप्स हो रहे हैं, जितने भी फाउंडर्स बन रहे हैं, लोगों के दिमाग में आफ्टर शार्क टैंक ये चीज आ गई है कि यार बिजनेस बनाना है, छोटा बनाओ बड़ा बनाओ मैटर नहीं करता, लेकिन आप खुद किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, आपकी अर्निंग खुद हो रही है एक मीडियम के थ्रू, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंडिया ऐसे ग्रो कर रहा है और ऐसे इंडिया जो है बदल रहा है। तो यही आपको बोलना है, बस एक चीज दिमाग में डाल लो यार कि 18 के बाद ना मम्मी पापा से पैसे नहीं मांगने। और ये हर आपको मतलब कोई भी पॉडकास्ट देख लो, किसी भी से पूछ लो, सब आपको यही एडवाइस देंगे, और मैं भी यही चीज बोलूंगा जो मेरे को भी लगती है। क्योंकि एक बार 18 में पैसा आ गया ना, तो आपको ना बोलते हैं ना कि शराब की लत लग गई या इसकी लत लग गई, लेकिन जिस दिन आपको पैसे की लत लग जाएगी ना, उस दिन आपको कोई रोक ही नहीं सकता। आपको कोई खींचने की भी कोशिश करेगा ना, आप नीचे नहीं आ पाओगे। बिकॉज आपको उस चीज की वो है जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जा रही है। वही चीज, मनी सॉल्व 70% ऑफ द प्रॉब्लम्स। एंड वो जो लोग पूछते हैं ना कि मनी फर्स्ट और हैप्पीनेस फर्स्ट, तो इट इज लाइक कि 70-30 रेशियो मेरे लिए तो टू बी ऑनेस्ट रहेगा कि 70 मनी सॉल्व करता है, बिकॉज आपके सराउंडिंग में सब कुछ मनी से ही आता है। हैप्पीनेस सबकी लाइफ में होती है, उसके पास पैसा नहीं है आज, वो भी कहीं ना कहीं खुश हो जाएगा, राइट? बट वो शायद उतना खुश नहीं होगा और वो उतने दिन के लिए खुश नहीं रहेगा। तो 70% इट इज ऑल मनी एंड 30% इट इज हैप्पीनेस। तो इसका ये एक एडवाइस यही रहेगा कि सब करो लाइफ में, लेकिन 18-19 तक फाइनेंशियली फ्री हो जाओ, उतना कि आपके पेरेंट्स पे बर्डन ना पड़े कि आज कॉलेज की फीस भरनी है, आज ये करना है। वो चीज आपको सॉल्व करनी है अपनी खुद की लाइफ में। बिल्कुल. I think this is one advice which is required
which is like, yeah, exactly, that's why countries like US are, you know, very advanced in terms of वहाँ पे इतने स्टार्टअप्स क्यों बनते हैं या फिर कुछ भी, ऑब्वियसली देर आर मोर रिसोर्सेज, लेस पॉपुलेशन, वो फैक्टर्स होते हैं, बट स्टिल यहाँ पे वो परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा इस वजह से भी कम है क्योंकि वो हमारी भेड़ चाल वाली मैंटेलिटी है, सबको इंजीनियरिंग करनी है, सबको डॉक्टर ही बनना है, एडमिशन्स होते नहीं है, 15 लाख बच्चे एग्ज़ाम लिख रहे हैं, दैट इज़ द प्रॉब्लम. आई थिंक इट्स नॉट, आई थिंक इंडिया इज़ ऑल्सो चेंजिंग अ बिट इन अ वे कि अब डिग्रीज मैटर नहीं करती, अब स्किल्स मैटर करती हैं, एंड आई थिंक दिस इज़ अ गुड चेंज और धीरे धीरे इट इज़ कमिंग अलॉन्ग. It is coming to, yeah. आई थिंक या आई हैव नो वर्ड्स. बहुत ही ज़्यादा शानदार कॉन्वर्जेसन रही है. हम लोग 2 घंटे हो चुके हैं, शायद हमें 2 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं हमें बात करते हुए, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया मेरे को, बहुत कुछ सीखने को मिला है, और अगले 2-3 महीने के लिए थोड़ी और मोटिवेशन मिल गई है क्योंकि मैं मोटिवेशनल स्पीकर्स को नहीं सुनता. मेरे को जब भी मोटिवेशन चाहिए होती है मैं या तो अपने पेरेंट्स के पास जाता हूँ या फिर मैं किसी एक ऐसे बंदे से बात करता हूँ अपने कनेक्शंस में, जो बंदा फोड़ रहा है वो बंदा एक अलग पर्सपेक्टिव देता है, मेरे को वो दोबारा मिल गया है, तो इसलिए मैं हर 15 दिन में एक पॉडकास्ट करता ही रहता हूँ कि मेरे को वो बस एक बूस्ट आता रहे मेरे अंदर. तो फैबुलस लक्ष्य, बहुत मजा आया. थैंक यू सो मच. मैं एक ही चीज बोलूंगा, इट इज ऑल अबाउट लर्निंग. मतलब मैं आपसे भी सीख रहा हूँ स्वरांश, टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट. आपने जो बिल्ड किया, आई एम नॉट सेइंग ओनली पॉडकास्ट विद द वर्ड्स की अगर मैं बात करूँ, राइट, तो वो इस एज में प्लान करना, बिल्ड करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है. मैं अगर आपकी जगह होता उस एज में मैं नहीं कर पाता, राइट. बैक ऑफ द चीज, पैसे बन रहे हैं नहीं बन रहे, दैट इज वन थिंग, राइट. बट इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने स्टार्ट किया. अगर आपने स्टार्ट कर लिया तो आप क्रैक डेफिनेटली कर लोगे, राइट. और मेरे को ऐसा लगता है कि आपसे कोई छोटा हो या आपसे कोई बड़ा हो, राइट, आप सबसे सीख सकते हो, और 99% आप अपने फेलियर्स में सीखते हो, आप अपनी सक्सेस में कभी भी नहीं सीख पाओगे. ये एंडिंग में भी एक बहुत बड़ा ये भी बहुत अच्छी एक एडवाइस है. ऑब्वियसली सक्सेस, आई थिंक विराट कोहली ने कहा था, एक इंटरव्यू में मैंने सुना था, विराट कोहली से इसकी सक्सेस डजंट टीच यू मच, इट बिल्ड्स योर ईगो. जो भी सिखाता है लाइफ में वो फेलियर ही सिखाता है. सक्सेस में तो आपको लगता है कि यार आप ही किंग हो, यू आर द अनडिस्प्यूटेड किंग, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, राइट. फिर वो आपकी ईगो बूस्ट कर रही है, कोई फायदा नहीं है उस चीज का. सो स्टे हम्बल, डाउन टू अर्थ. जितना ग्राउंडेड रहोगे उतना सीखते जाओगे, उतना ग्रो करते जाओगे, क्योंकि एक बार आपको ऐसा लगेगा कि भाई मैं ही किंग हूँ, तो उसके बाद तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी. आप फिर आपको लगेगा कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, राइट. तो वो चीजें मैटर करती है. इसलिए हमेशा बेटर है कि अपने फेलियर से सीखो. आज गिर रहे हो तो टेंशन मत लो. हमारे साथ भी बहुत बार होता है कि केस गियर में या फिर मेरे प्रोडक्ट सर्विस बिजनेस में बहुत सारे अप्स एंड डाउन, या चैनल अभी उतने पेस पे ग्रो नहीं कर रहा, बट मुझे पता है टाइम आएगा कि मैं फिर से नंबर 1 बन जाऊंगा, राइट. बट मेरे को पता है नंबर 1 बनने के बाद भी वापस से नीचे आना, फिर ऊपर जाना, तो ये ऊपर नीचे चलता रहेगा. बट ऑल द थिंग मैटर इज कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, राइट, फोकस रहना है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि रोज सीखना है. रोज सीखोगे तो ग्रो करते जाओगे, सीखना बंद कर दोगे तो आपकी ग्रोथ भी रुक जाएगी. बिल्कुल. आई थिंक लास्ट में आते आते भी हमें 4-5 और एडवाइसेस मिल गई हैं, एंड आई थिंक बस इससे ज़्यादा मैं कुछ कहूँगा नहीं. इन्हीं 4-5 चीज़ों के साथ आई लीव यू ऑल गाइज. और हाँ, थैंक यू सो मच. यहाँ तक रुके हो तो थैंक्स अलॉट. यहाँ तक देख रहे हो, अगर यहाँ तक सीख रहे हो अभी तक भी, तो थैंक यू सो मच. और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो. डेफिनेटली चेकआउट केस गियर, और केसेस खरीदो तो पक्का वेबसाइट से खरीदना, मेरे भाई को वहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट होगा. और प्रमोट इंडियन स्टार्टअप्स. और क्या ही बोलूँ, बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और बस यहीं पे ख़त्म करते हैं. थैंक यू सो मच लक्ष्य फॉर डूइंग दिस ऑन अ संडे आफ्टरनून. एंजॉयड अ लॉट. थैंक यू सो मच. थैंक यू.